अपन जो हम बात करेंगे दैट इज CNN, या जिसको ये इसकी फुल एब्रीविएशन है दैट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है. So these networks are actually inspired by how human or a living being actually perceive or process visual information. Okay, like in the talk in the last one we talked that how what is the motivation or from where like the neural networks actually got the inspiration. Okay, तो वो था हमारे पास न्यूरॉन, जो जिस तरह हम ह्यूमन बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं उसको मिमिक करने की हम कोशिश करते हैं, उसी एक्चुअली फंक्शनलिटी को हम कॉपी करते हैं आर्टिफिशियली. तो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स डिज़ाइन होते हैं, बट विद इन दोज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स like now there are several kind of variants, and each and every variant is actually specialized on the processing of specific kind of data. Okay, means उसके अंदर जो main operation होगा कि how it is actually handles the data and what kind of actually data it is it will work better on. So इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. उनमें से एक हमारे पास है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क. इस नेटवर्क के अंदर जो मेन ऑपरेशन होता है दैट इज ऑफ कन्वोल्यूशन, ठीक है. एंड दिस नेटवर्क मेनली वर्क्स बेटर ऑन द विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू इट. नाउ लाइक the simple neurons also in the human being or living beings जो विजुअल इंफॉर्मेशन परसीव होती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली देन उसके बाद जो न्यूरॉन्स है हाउ एक्चुअली दे परफॉर्म द एक्टिविटी, सो दैट इज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना, and this phenomena is actually translated into the CNNs, convolutional neural networks. That's why like they mainly perform better on the visual information. और इसकी इंस्पिरेशन हमारे पास कहाँ से आती है? एक्चुअली हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, होबल एंड वेसल. दे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट on different cats. Okay, so what they did, like okay, few of the cats like they used like who can see through the both eyes, and a few of them like they blinded, I mean they covered one eye, and like for a specific time period those cats were able to see through just one eye. Okay, now they what they did, इसके अंदर इसका इनका एम क्या था कि एक्चुअली अगर तो हम इस तरह की इम्पेयरमेंट कर लें विजुअल सिस्टम में, तो is there any actually behavior, is there any effect on the behavior of neurons, actually how they distribute or how they process the visual information? Is there any change or it will still be the same? Okay, and during this experiment they came to know कि एक single neuron जो है, ठीक है, वो किस तरह simulate होता है और how they actually process the visual information. So single neuron की activity को उन्होंने note किया, means this was the very first time like somebody actually noticed the single neuron activity on visual data, and afterwards like okay, by like how these multiple neurons are behaving, they actually created the distribution of those neurons like whichever is simulated by the visual information behind these two types of cats. ठीक है, तो इसी से इंस्पायर्ड होके आर्टिफिशियली फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप बनाई जिसको they named it convolution neural network. Now here the main thing is that the input data which we provide, what we said that this kind of networks actually perform better on the visual information. Okay, so visual information will be at least in 2 dimensions. So let's say हम एक नेटवर्क को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो हमने डेवलप किया है उसको 2 dimensional जो है डेटा प्रोवाइड करेंगे,
दे कैन CNN कैन आल्सो, इनका डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, वो सिंगल डायमेंशनल डेटा के ऊपर भी काम कर सकते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल के ये जस्ट 2D या 3D के ऊपर काम करेंगे. इट दीज आल्सो कैन वर्क ऑन द सिंगल डायमेंशन डेटा जो हम इनपुट में प्रोवाइड करेंगे. बट फॉर दैट what we have to do, we internal जो उसका आर्किटेक्चर है, मीन्स what kind of filters the network is using, तो उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. बट बाय डिफॉल्ट इनिशियली दे वर एक्चुअली डिजाइन टू वर्क ऑन दीज 2 डायमेंशनल डेटा. तो इनपुट में हम 2 डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे, 2 डायमेंशनल डेटा प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट डेटा विल बी एक्चुअली मैनिपुलेटेड लेयर वाइज थ्रू द फिल्टर्स इन ईच लेयर. हर एक लेयर के अंदर जो है हमारे पास क्या होंगे, फिल्टर्स होंगे. वो फिल्टर्स हम क्या करेंगे, इन सीक्वेंस लेयर वाइज फैशन हम उस विजुअल इंफॉर्मेशन जो कि इनपुट में हमारे पास आई है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे. एंड इन दिस वे एक्चुअली they will extract some useful information from the input data. Okay. Now these neurons, like these filters, actually these filters will be kind of in image processing. Maybe you must have familiar with the masking operation. तो ये somehow similar उस masking operation के साथ है कि हम एक specific size की window consider करेंगे. In this terminology, in these networks, ये जो window होगी special size की, they will actually एक finite number of neurons होंगे जो कि हमारे पास जो input data है 2 डायमेंशनल उसकी dimension से हमने इसको lesser consider करना है. And these multiple filters, each filter will have multiple neurons within it, और हर एक जो filter है it will be looking at some area on that 2 डायमेंशनल plane. ओके, जो इनपुट हमारे पास 2 डायमेंशन की आती है उसके किसी ना किसी एरिया के ऊपर ये फोकस करेगा. ओके. Now in this example, let's say like, okay, we have, for instance, multiple filters over here, and we can see like a single filter, let's say it is composed on different neurons. Okay. And these neurons will be applied to the input data, means हर एक न्यूरॉन जो है वो एक स्पेसिफिक इनपुट डेटा जो है उसके स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है. ठीक है. इसी तरह दूसरा जो फिल्टर होगा वो भी उसका भी सेम ही फंक्शन होगा. वो क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो उस इनपुट इमेज के मल्टीपल रीजन्स के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे. नाउ हियर इट हैज सम बेनिफिट. ये काम एक्चुअली हम प्रीवियस सिंपल CNN के थ्रू भी कर रहे थे. बट इन दैट व्हाट वी हैड कि हमारे पास जस्ट एक लेयर होती थी, उसके अंदर फिल्टर्स नहीं होते थे. जो जितने भी न्यूरॉन्स होते थे दोज न्यूरॉन्स वर they were attached with the I mean the inputs from the previous layers. ठीक है. तो उसके अंदर ये filters का concept नहीं था. If we introduce the filters तो हमारे पास depth perception भी आती है. Means let's say we have these multiple filters which are focusing on the same data in redundant way. तो हर एक जो लेयर है, मीन्स हर एक जो फिल्टर है, it will actually perceive the information from this input data. It will extract some useful information from this input data according to its own perception. ठीक है. तो हमारे पास let's suppose after the application of this convolution operation, तो फर्स्ट लेयर के जो हमारे पास एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन है वो अलग से आएगी, सेकंड फिल्टर की एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन वो अलग से आएगी, थर्ड लेयर की जो एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन है वो अलग से आएगी, एंड सो ऑन. तो हर एक लेयर के अंदर जितने भी हमने नंबर ऑफ फिल्टर्स यूज किए होंगे, सो दे विल एक्चुअली क्रिएट सम काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट सम काइंड ऑफ 2D मैप. ठीक है. और जिसको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके
फर्दर अगली जो हमारे पास लेयर है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह ये जो मल्टीपल फिल्टर्स अगर हम अप्लाई करें तो इस तरह इसकी डेप्थ में भी इंक्रीमेंट आता है। सो फर्दर इसकी जो 2D या विजुअल इंफॉर्मेशन से लर्निंग कैपेबिलिटी है वो फर्दर इन्हांस हो जाती है इस तरह। ओके, सो यू कैन सी दैट इफ वी प्रोजेक्ट दिस लाइक यहाँ पे वन डायमेंशनल ऑपरेशन हमने शो किया हुआ है। सेम अगर हम इसको 2D ग्रिड के थ्रू प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ऑपरेशन को डिफाइन करें, इट विल एक्चुअली लुक लाइक दिस दैट ओके वी हैव सम इनपुट, टू डायमेंशनल इनपुट है, और उसके अंदर हम अगर एक फिल्टर पिक करके उस इनपुट के ऊपर अप्लाई करें, सो एक्चुअली दिस फिल्टर विल बी performing a convolution operation on some minor regions one by one. Okay, means सारे इनपुट के ऊपर इस फिल्टर ने ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट एट ए टाइम इट विल बी लुकिंग एट सम स्मॉल एरिया ऑफ दैट whole 2D grid. Okay, and then afterwards what we do, once it is done with this region, so we will shift this filter a little bit so that it can actually see on the new area as well, जो कि पहले उसने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन जब परफॉर्म किया उस टाइम कंसीडर नहीं ना किया हो। ठीक है, तो इस तरह हम शिफ्ट करते करते क्या करते हैं, पूरी 2D ग्रिड को कवर करते हैं। और हमारे पास एक फिल्टर नहीं होता, मल्टीपल फिल्टर होते हैं और सारे फिल्टर ये काम परफॉर्म करते हैं। नाउ अगेन एज वी लास्ट टाइम saw that okay, if different neurons are looking at the information जो कि हमने इनपुट में प्रोवाइड की है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्चुअली यूजफुल। मे बी आउट ऑफ द ऑल दीज कनेक्शंस मीन्स जो न्यूरॉन्स हैं, किसी को जो है means this filter will consider that the information which is provided to this specific neuron is useful as compared to others. So वो जो useful information है actually it will store the record of it. It will consider this information, these specific connections for further processing and actually avoid the other ones which are least informative. तो उसको क्या कर लेगा, डिक्लाइन कर लेगा, इट विल एक्चुअली ओवरलुक। सो इन दिस वे व्हाट इट डू, इट advances and perform the convolution operation. Okay, so like this, okay, once the filter has decided like okay these two neurons is actually looking at the informative regions, so the weight of these regions will be adjusted। ठीक है, मीन्स हर एक कनेक्शन का वेट, एक स्पेसिफिक रिलेवेंट वेट उसको मिलेगा, जिसकी बेस के ऊपर एक्चुअली ये डिसाइड होता है कि कौन से कनेक्शंस एक्चुअली दीज आर वर्थी एंड विच वन आर नॉट इंफॉर्मेटिव। तो इन्हीं वेट्स के बेस के ऊपर ये डिसाइडेड होता है, किसी को हम निगलेक्ट करें और किसी को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम कंसीडर करते हैं। एंड आफ्टर दैट out of these weights actually so they will perform the convolution operation, or after the convolution operation some specific quantity will come which will actually replace all this the overall region। जो हमारे पास before the convolution operation we were looking at let's suppose 4 data points, so after the convolution operation it will be converted just into one single point। Okay, so this is actually the working of CNN। So once the convolution operation is performed, so after that normally what we do, we append multiple different types of layers। ठीक है, हमने क्या कहा था कि CNN जैसे कि इसके नाम में आते हैं convolution neural network, so the main operation of these network is to perform convolution, okay, operation on the two-dimensional data or one-dimensional data or three-dimensional data, whatever you provide to these network। Now actually to perform or extract usual information, ठीक है, so what we do, we do not just rely on this main operation, we also need
different types of intermediate layers, ठीक है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास सबसे पहले एक लेयर आएगी जिसको नॉर्मली रेलू लेयर कहते हैं, ठीक है। मोस्ट डीप नेटवर्क्स के अंदर जो हिडन लेयर्स होते हैं उसके अंदर हम ये क्या करते हैं, ये ऑपरेशन कंसीडर करते हैं। ज़रूरी नहीं है, कभी कभार according depending on the application, instead of ReLU we also consider different type of layers over here, ठीक है। ReLU is actually an activation function, ठीक है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम न्यूरॉन को डिस्कस करते हुए हमने कहा कि हर न्यूरॉन के अंदर एक एक्टिवेशन फंक्शन हमने कंसीडर करना होता है, एंड इट डिपेंड्स in which place, actually in which layer we are considering that activation function, and also like it depends on the type of application we are dealing with, okay, and type of data we have. So mostly what they do after the main operation, यहाँ पे ReLU function हम consider करते हैं which actually rectifies whatever is coming from the previous layers. तो just वो scaling का operation यहाँ पे perform हो रहा होता है, ठीक है। and after that वट वी डू के हमारे पास कुछ पूलिंग लेयर भी हम डीप नेटवर्क्स के अंदर कंसीडर करते हैं। इट इज़ आल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर, उसकी फंक्शनैलिटी भी जो है डिफरेंट है। वट इट डू के काइंड ऑफ सब डाउन सैम्पलिंग, ये लेयर जो है डाउन सैम्पलिंग के तौर पे यहाँ पे हमारे पास परफॉर्म करती है, ठीक है। and after the pooling layer what we do, we in the end एक डीप नेटवर्क के अंदर फुली कनेक्टेड लेयर हम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट लाइक वट एवर इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम हेयर विल बी शैल बी कन्वर्टेड इनटू डेंस लेयर, ओके। हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आ जाए, वेक्टर फॉर्म में डेटा आ जाए, एंड देन बेस्ड ऑन दिस वेक्टर we shall actually calculate the entropy, let's suppose probability, likelihood of the data to the different classes in the output, ठीक है। आफ्टर दिस फुली कनेक्शन लेयर एक्चुअली द आउटपुट हमारे पास कोई सॉफ्ट मैक्स फंक्शन होगा या कुछ इस तरह का एक टाइप का क्लासिफायर होगा जो कि डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल लेट्स सपोज CNN, अगर मैं CNN के डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वर्जन्स बनाए हैं और उनको डिफरेंट नाम दिए हैं, जिस तरह एलेक्स नेट है या इमेज नेट है, गूगल नेट है, ठीक है, रेस्ट नेट है, ठीक है। तो ये जो है हम क्या करते हैं, इसी सिंपल उन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स की तरफ ना नहीं जाते, हम क्या कहते हैं कि एक सिंपल एक रैंडम अगर हमारे पास CNN हो तो उसके अंदर ये वाली लेयर्स जो है हमेशा आपको मिलेंगी, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेयर्स। इसके अलावा और भी इन बिटवीन दिस लेयर्स यू कैन इंट्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स, जिसके अंदर प्रोमिनेंट एग्जांपल आ सकती है ड्रॉप आउट लेयर की, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो ओवर फिटिंग है, ठीक है, उससे बचा जाए। मींस के हमारा जो इंटरनल लर्निंग प्रोसेस है नेटवर्क का उसको रेगुलेट कर सके ताकि ओवर फिटिंग जो है उसके चांसेस कम से कम हो, ठीक है। नाउ इफ वी स्टैक लेट्स से, यहाँ पे तो इस नेटवर्क के अंदर जस्ट एक कन्वोल्यूशन लेयर हमने कंसीडर की। So in this network, as we can see that we have a convolution layer, so we can say, okay, this is the CNN. Now the question is, okay, if we stack multiple convolution layers, if we use multiple convolution layers in a single network, that will be we will be considering like, okay, we are creating the connet or convolution stack, okay, connet stack or convolution network stack, okay, and this sort of convolution network will be described or known as deep convolution network, okay. Any questions so far? No, sir. Okay, so now this was actually like some
architectural overview of CNNs, like उसके architecture के अंदर कौन कौन सी layers हैं और most important layer कौन सी है, and if we stack that most important layer multiple times, so what we can say to that network. Okay. Now within the convolution layer, how the things जो operation होगा वो किस तरह perform होगा. So in here, let's say we have some three-dimensional image. Okay, थ्री डायमेंशनल इन द सेंस के जो हमारे पास कलर्ड इमेजेस हैं, तो उसको हम इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री colors, so that's why these are considered as three-dimensional images. By itself, these data or image has two dimensions like height and width. Okay, तो ये डेटा एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, नेटवर्क की इनपुट पे लेट से आता है, एंड इस नेटवर्क इस डेटा के ऊपर देन द नेटवर्क विल एक्चुअली अप्लाई फिल्टर्स. सो नॉर्मली जो फिल्टर्स होते हैं उनकी जो डायमेंशन होता है, ये एक्चुअली एक मास्क होगा. जिस तरह हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर मास्क होता है, मास्क को हम क्या करते हैं, एक इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं और कोई मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो यही सेम एनालॉजी आप यूज कर सकते हैं कि हमारे पास लोअर डायमेंशन के न्यूरॉन्स होंगे, उन न्यूरॉन्स के ऊपर को हम क्या करेंगे, इस मेन इमेज के ऊपर स्लाइड करेंगे, एंड एवरी टाइम इट विल कैलकुलेट सम सॉर्ट ऑफ convolution operation. ठीक है, और at the end it will provide us with a specific result. Now let's say हमारे पास जो है एक इमेज है और उसके ऊपर जस्ट एक ही फिल्टर अप्लाई करते हैं, और फिल्टर की जो डायमेंशन है दैट इज 5x5 फिल्टर है. ठीक है, ओके, सो एक्चुअली इसकी जो ये डायमेंशन 3 नहीं है जी, सो इसकी डायमेंशन क्या है दोबारा बताएं. ये 3-डायमेंशनल फिल्टर है विच हाइट है इज 5 एंड विड्थ इज 5. ओके जी सर, वो आपने ओके, 5x5 वाला मुझे 2 डायमेंशन 5x5 उसका साइज मैं बता रहा हूँ. ओके, सो ये एक स्पेसिफिक फिल्टर जो हमारे पास इनपुट इंफॉर्मेशन आ रही है उससे एक्चुअली इतने पैरामीटर्स लर्न कर रही है. ओके, dimensional dot products it will be performing on this input data. Okay, and there will be actually one additional entity which will be considered as the bias. ठीक है, bias का concept हमने already पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, एक additional offset provide करते हैं किसी specific layer को, उसको हम कह सकते हैं that is the bias. So after the convolution operation, so this actually filter will learn some kind of compressed information from this original data. Okay, and it will create actually some sort of a 2D map जिसको हम क्या कहते हैं, activation map ये create करेगा. So whenever we apply actually a filter to the input data, it in the output what it do, it create an activation map. हर एक फिल्टर का एक एक्टिवेशन मैप हमारे पास आएगा. नाउ एक्टिवेशन मैप इज व्हाट इज एक्टिवेशन मैप. लेट्स से हम क्या करते हैं कि ये जो फिल्टर है इसको हम 2-डायमेंशनल डेटा के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. तो actually this filter will divide the whole 2D data into smaller portions, और हर एक portion के ऊपर in a sequence this filter will perform the convolution operation. Whenever the filter is applied to specific region, तो उसकी कोई एक specific हमारे पास output, एक number output में आएगा. ठीक है, as it is 2-dimensional data and sequential process, so एक दफ़ा अगर हम filter apply कर लें
तो ये हमारे पास कंप्लीट नहीं होता, हमने पूरे इनपुट को के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो व्हाट वी डू, वी स्लाइटली स्लाइड दिस विंडो, स्मॉलर विंडो ऑन द बिग विंडो, सो दैट ऑल द एरिया इज कवर्ड. तो जब हम ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में भी मल्टीपल नंबर्स या मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं, जिनको हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस वाइज उसको 2 डायमेंशनल ग्रिड के अंदर अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, उसी ग्रिड को we say this is the activation map of a particular filter. So in case if we have multiple filters, okay, so we will have multiple activation maps in that layer. Okay, respective हर एक filter का अपना एक activation map हो गया. Just as shown in this example, let's say if we have 6 filters, okay, सेम 5x5 फिल्टर्स हैं, मीन्स हमारे पास टोटल 6 फिल्टर्स हैं और हर एक फिल्टर का साइज जो है वो 5x5 है, और उसको हम अप्लाई करते हैं इस 32 मीन्स 32x32 इनपुट के ऊपर. ओके, सो व्हाट वी विल डू कि हमारे पास आउटपुट में जो एक्टिवेशन मैप है वो 6 आएंगे. हर एक फिल्टर के अपना रिस्पेक्टिव एक्टिवेशन मैप होगा, पहली बात तो ये है. और हमारे पास जो आउटपुट डायमेंशन आएंगे, जो आउटपुट में इमेज आएगी, ठीक है, वो एक दैट विल नो लॉन्गर बी अ सिंगल आई मीन इमेज. द उसकी जो हमारे पास कापीज क्रिएट होंगी, पहली बात है 6 कापीज क्रिएट होंगी और हर एक कापी की जो साइज होगा दैट विल बी 28x28. सो इन दिस वे एक्चुअली वी इंक्रीज द डेप्थ वाइज भी हम एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स एनालाइज कर रहे हैं, और इसी तरह विजुअल इंफॉर्मेशन हम बेटर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 2D इनपुट ग्रिड से. सो कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स, ये तो हमारे पास था कि एक सिंगल कन्वोल्यूशन लेयर किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करता है. अब इसी कन्वोल्यूशन अगर तो हम मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स कंसीडर कर लें, so these will be termed as connet stack. okay, और उसके अंदर नॉर्मली जो हमारे पास जो कॉन्नेट का जो स्टैक होता है उसमें मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स होते हैं, एक से ज्यादा कन्वोल्यूशन लेयर्स होते हैं नॉर्मली. ओके, और हर एक कन्वोल्यूशन लेयर विल बी सेपरेटेड थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन. ओके, मींस कहने का मतलब ये है कि बिटवीन और अमंग दीज कन्वोल्यूशन लेयर्स क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल दूसरी लेयर्स होती हैं, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड्स के ऊपर देखा कि एक लेयर हमने रैली लेयर कंसीडर की, ठीक है, जिसका मकसद जस्ट ये था कि जो कुछ भी कन्वोल्यूशन लेयर से आउटपुट आए उसको रेक्टिफाई कर लिया जाए. फिर उसके बाद हमने पूलिंग लेयर भी कंसीडर की, ठीक है, जिसका मकसद ये था कि जो जितने पैरामीटर्स ये कन्वोल्यूशन लेयर लर्न कर रही है उसको समहाउ रिड्यूस सब सैंपल कर दिया जाए, और उस सब सैंपल डेटा को व्हाट वी डू कि हमारे पास फिर एक कन्वोल्यूशन लेयर होगी, उसको हम इनपुट में देंगे और ये प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन इट विल बी रिपीटेड. ठीक है जी. So let's say how these parameters जो learnable parameters हैं, these are learned layer wise. Let's say we have the input volume, okay, जो हमारे पास input data है उसका ये volume है 32x32 into 3, and we apply 10 filters of size 5x5 with the stride 1 and pad it 2. तो जो हमारे पास स्पेसिफिक लेयर है जिसके अंदर 10 फिल्टर्स हमने कंसीडर किए हैं, तो इससे जो लर्नेबल पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, दोज विल बी एक्चुअली दिस थिंग. ओके, जो आउटपुट एक्चुअली
हमारे पास अगर तो हमारे पास जो इनपुट वॉल्यूम है जस्ट एक सिंगल इमेज एक्चुअली हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उस इमेज के ऊपर उस इमेज की साइज ये है और अगर हम डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वॉल्यूम बन जाता है ओके 32 क्रॉस 32 इंटू 3 तो ये एक्चुअली हम इस वॉल्यूम का डेटा जो है एक कन्वोल्यूशन लेयर को इनपुट में दे रहे हैं जो आउटपुट वॉल्यूम होगा डेटा का ठीक है जो तो दैट विल बी एक्चुअली obviously you are applying 10 filters so this will be no longer multiplied by 3 it will be multiplied by 10 means 10 activation maps ban rahe hain and each activation map will be somehow will be equal to 32 into 32 तो हमारे पास टोटल जो डेटा का आउटपुट वॉल्यूम होगा दैट विल बी दिस एंड आउट ऑफ दिस वॉल्यूम व्हाट ईच फिल्टर विल बी लर्निंग इज दिस थिंग ठीक है कि साइज ऑफ द फिल्टर इनटू डायमेंशन ऑफ द फिल्टर प्लस 1 बाइस ओके तो ये हमारे पास हर एक फिल्टर इस इनपुट वॉल्यूम के डेटे से ये पैरामीटर्स लर्न कर रहा होगा एंड इफ वी हैव 10 फिल्टर्स so this the number of parameters learned by single filter will be multiplied with 10 and plus biases if there are any okay तो हमारे पास जो पैरामीटर्स लर्न किए जाएंगे उस स्पेसिफिक लेयर के अंदर थ्रू द फिल्टर्स that will be like this in case we have 10 filters okay now things to note the noteworthy things over here are important things जो हम इस CNN की जो डिस्क्रिप्शन हमने पेश की या उसका जो ऑपरेशन डिस्क्राइब किया तो ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए कि what you do it will actually the network will actually accept some sort of input volume data उसके ऊपर कन्वोल्यूशन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं ये पैरामीटर्स हैं जिनको हम हाइपर पैरामीटर कहते हैं तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड बाय यूजिंग दीज parameters actually you can calculate that what sort of volume will be provided in the output okay so also आप पैरामीटर कैलकुलेशन भी यहाँ से कर सकते हैं एज वेल एज दीज आर हाइपर पैरामीटर सो हाइपर पैरामीटर का क्या होता है कि आप नेटवर्क की लर्निंग को इससे रेगुलेट कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर और ताकि कोई इस तरह स्पेसिफिक टाइप का आर्किटेक्चर आप कंसीडर कर लें जो कि उस टाइम पे जो डेटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर बेहतर तरीके से काम फंक्शन परफॉर्म करें ठीक है so normally here the capital K is considered as number of filters okay means obviously in each layer convolution layer so you have to define how many filters you will be considering okay so actually normally there is no fixed criteria to come up with the answer कि एक डेटा है आपके पास तो उसके ऊपर exactly how many number of filters you have to consider in a single layer so what it is kind of trial and error based criteria you have to check again and again repetitive process करना होगा and then you have to come up with the answer के किस size का और कितने number of filters जब मैंने एक सिंगल लेयर के अंदर कंसीडर किया सो दे दोस परफॉर्म्ड वेल ओके आल्सो के ये साइज और नंबर ऑफ फिल्टर्स इसके अंदर स्ट्राइड का एक कॉन्सेप्ट है एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट है ठीक है कैन एनीबॉडी डिफाइन मी व्हाट इज स्ट्राइड एंड व्हाट इज पैडिंग जी
Any person who knows the concept of stride? Okay, most of you guys also once or twice told me like I have worked with the ANN, and few of you guys already studied the machine learning course. जी ओके इस क्लास के अंदर कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन ANN एंड लाइक on some topic we applied ANN, we got the results and this kind of stuff. So obviously Yes, those sir. sort of people must have some idea about this thing. यस सर, केएनएन पे किया था काम तो KNN और जी ANN? नहीं केएनएन जो के नियरेस्ट नेबर है अच्छा 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 चलें, उसमें तो ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता ना. यस सर उसमें किसी और ने ANN का भी नाम लिया था, नो आई फॉरगॉट द नेम, कि मैंने ANN यूज करके कुछ किया है. So okay, let me define this thing. Okay, so देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के ऊपर, कि ये जो हमारे पास बड़ी 2D ग्रिड है उसके ऊपर ये छोटी जो हम जिसको हम नाम दे रहे हैं फिल्टर, इसको स्लाइड कर रहे हैं. ओके, वन बाय वन जो है इन ए सीक्वेंस पैटर्न हम एक स्पेसिफिक लिटिल अमाउंट ऑफ एरिया को कवर करके उसके ऊपर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. फिर उसी सेम विंडो को स्लाइड करके थोड़ा सा शिफ्ट देके हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नया रीजन कंसीडर करके उसके ऊपर फिर अगेन कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर शिफ्ट देके अगेन वी परफॉर्म दिस कन्वोल्यूशन लेयर, एंड दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म टिल कि जितना भी हमारे पास इनपुट में जो 2D ग्रिड आई है वो सारी की सारी कवर ना हो जाए. ओके, तो ये जो स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली दिस इज द शिफ्ट, अमाउंट ऑफ शिफ्ट यू आर प्रोवाइडिंग टू दिस फिल्टर. ओके, कि अगर हम स्ट्राइड 1 कंसीडर करेंगे, सो व्हाट डज इट मीन कि इट विल एक्चुअली शिफ्ट अ सिंगल यू में से कॉलम. ओके, सिंगल सिंगल सेल्स जो है ये सिंगल सेल शिफ्ट परफॉर्म करेगा ये विंडो, एंड अगेन लाइक इट विल कंसीडर the region for convolution operation. And if we increase the size of this shift, let's say 2, so obviously it will provide 2 cell shift. As it is 2-dimensional, so that's why I am saying that it will be considering 2 cells shift. Okay, and in this way, like in sequential pattern, you will be shifting this window on the whole input data, and in the until you cover the whole data. Okay, so stride actually is synonym to shift. एंड जो हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग हमारा जस्ट इधर नहीं, पैडिंग का कंसेप्ट बड़ा ही जनरल है कि वट एवर इफ नीडेड वी अपेंड some false information, okay, or some redundant information into the original data. तो means pad add up कर लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल डेटा, सो दिस इज एक्चुअली पैडिंग. और कभी कभार इस ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है कि सम टाइम इट हैपन्स कि जो हमारे पास इनपुट डेटा है और जो हमारा और जो जिस साइज का हमने फिल्टर कंसीडर किए हुए हैं, सो व्हेन वी परफॉर्म दिस convolution operation on the whole data, so at the end when it reaches or somewhere if it reaches to the border, so हमारे पास जो filter है it is not properly covering the input input grid. maybe 5x5 है तो जो इसके 3 कॉलम्स हैं फिल्टर के, उसके नीचे हमारे पास ओरिजिनल
ग्रिड इंफॉर्मेशन मौजूद हो, बट इसके जो दो फिल्टर्स कॉलम्स इस तरह होंगे जो मे बी वो एक्सीड कर रहे हैं, उसके नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना हो। सो दैट्स वाई लाइक व्हाट वी डू कि हम एक फॉल्स इंफॉर्मेशन अपेंड कर देते हैं ताकि ये जो है फिल्टर अप्रोप्रिएटली उसके ऊपर जो है रिजाइड कर जाए। ठीक है, ऐसे ना हो कि इसके जो एजेस हैं वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से बाहर निकल जाए। ठीक है, सो इन very rough aspect, so this is actually the definition of padding, like we add the unnecessary or false data into the original so that like the convolution operation through the filters shall be performed in a good way. Okay, so let's say if we have 5 filters in a convolution layer, which is actually this convolution layer is arranged in the 3D grid. So what we will be saying, as we have considered 5 filters, so at the same time 5 different neurons will be looking at a specific region of the input grid. Okay, and in this way actually each of these 5 neurons will create some own type of perception about this observed region. ठीक है, और हर एक न्यूरॉन जो है आउटपुट में फिर उसके जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा, और हर एक न्यूरॉन से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी अगर तो हम उसको सीक्वेंस कि किस एरिया को हमने अभी ऑब्जर्व किया और उससे न्यूरॉन्स की क्या आउटपुट वैल्यू आई, हर एक न्यूरॉन की इस तरह अगर हम ये सीक्वेंस में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते जाएं तो हमारे पास वो क्या 2D ग्रिड बन जाती है। हर एक न्यूरॉन की अपनी 2D ग्रिड बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन मैप। ओके, इन सिंपल वर्ड्स के न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होता है। जब हम किसी चीज के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में कोई हमारे पास कोई नंबर कोई वैल्यू आएगी, उन वैल्यूज को अगर हम सीक्वेंस में स्टोर करते जाएं तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस की आउटपुट की एक 2D ग्रिड बन जाती है जिसको हम एक्टिवेशन मैप कहते हैं। एक्टिवेशन वैल्यूज को अगर हम स्टोर कर लें 2D ग्रिड में तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन मैप कहेंगे। नाउ एज वी हैव सीन बिफोर, ये जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स के अंदर हम न्यूरॉन्स की बॉडी के अंदर हम यूज करते हैं, सो वी हैव लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन यूज different types of activation functions over here, like we have maybe sigmoid activation function. Okay, we also have different other types of functions, let's say rectification units or function we can use. Similarly, linear activation function we can use, tangent functions we can use. Okay, so we have the flexibility to use different types of activation function within the neuron of different layers. Okay, so if you have this flexibility, now there is like a question which arises. The question is like how we will decide how to use an activation function in a particular layer. इसका already मैं कई बार आंसर दे चुका हूँ. Who will tell us about this thing? हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे किस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज करना है नेटवर्क के अंदर? जी, एनीबॉडी?
आप लोगों को आवाज भी मेरी आ रही है या नहीं? आ रही है सर। तो बंदा रिस्पॉन्स कर देता है, आई एम आस्किंग constantly asking the question and nobody is responding. Okay, let me ask one by one. Yeah, Amina Saud. And keep in mind, if somebody doesn't answer the question, okay, whenever I ask a particular name I call and the person doesn't respond, so straightforwardly that person attendance, it means that person is not there. If he is not responding, the person is not responding, it means that the person is not available there, okay, and the person will not get the credit for the sessional as well as the attendance. Okay, so next we have Hakim. Ikra Munir. काशिफ जफर. जी सर। जी आप मुझे ये बता दें कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं इसको हमने किस तरह यूज करना है, मीन्स हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी जगह पे किस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज करना है? सर नहीं आइडिया। Okay. कामरान. पोलिनोमियल सर। नहीं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमने एक्टिवेशन फंक्शंस यहाँ पे चेक किए कि लीनियर फंक्शन भी हो सकते हैं, हमारे पास सिग्माइड भी हो सकता है, हमारे पास जो है ये रेक्टिफिकेशन यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, हमने किस तरह चूज जी करना सर। है कि कौन सी जगह पे किस टाइप का यूज करें? मीन्स ये कंफ्यूजन है ना, हमें किस तरह पता चलेगा कि इतनी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने ये चॉइस किस तरह लेनी होगी? How we have to choose to use a particular activation function on a specific layer. सर मैं बताऊं? एक मिनट, आपकी बारी आएगी. ओके, चलें ठीक है. ओके, नाउ वी हैव मोहम्मद तकी. जी सर। जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी है. सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है. सेम क्वेश्चन है आपसे. सर इसको इसमें आंसर हमारे करें. पास जी जी सर, इसमें हमारी इनपुट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि लाइक अगर सिंगल इनपुट है तो हम लीनियर फंक्शन यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम रेक्टिफाइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। नेगेटिव है तो रेक्टिफाइड. ओके, नॉन नेगेटिव सॉरी, और इसी तरह हमारी अगर -1 to 1 होगा तो फिर हम टेंजेंट -1 to 1. अच्छा, आपने तो समहाउ उनकी रेंजेस हाइपरबोलिक बता दी. फंक्शन यूज करेंगे। आपने रेक्टिफिकेशन फंक्शंस की रेंजेस बता दी, लेकिन एक्चुअली हमारा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था कि कहाँ पे हमने किस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है, ये एक्चुअली हमारा वो था. ओके, कौन रहते हैं? मुकद्दस मुगल. नसीर अख्तर.
यस सर। ओके सेम क्वेश्चन आपसे। जी सर, मैं मतलब फुल श्योर तो नहीं, अंदाजा टाइप। मसलन मेरा ख्याल है कि वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मसलन जो आपको एनवायरनमेंट मिला हुआ है उन चीजों को देखते हुए फिर आप यूज केस 1 to 1 है, बाउंडेड बिलो बाय 0, ये मतलब ये चीजें, इनकी हमें प्रॉपर्टीज तो पता है, तो जो हमारे पास जो सिनेरियो होगा उसके हिसाब से लगाएंगे। सही। सहर अफजल। यस सर। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है आपसे, आप आंसर दे दें। कि जी जैन अली। यस सर। सर ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना, ये वैसे आउटपुट नोड को डिफाइन करता है जब हम एक इनपुट डाटा सेट जब अप्लाई करते हैं, तो इसकी हमें वो वैसे वो बाइसेस वगैरह भी देखते हैं, वेट भी इसमें हम देखते हैं इसका। जुफ्शान हमीद। सर मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि हम जो इसको डिफाइन, जो भी हमने अपना फंक्शन यूज करना होता है, हमारे फर्स्ट तो ये होता है कि हम अपने इनपुट वैल्यूज को देखें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव भी हैं और नॉन नेगेटिव भी हैं, तो उस सिचुएशन में हम हाइपरबोलिक टेंजेंट यूज करते हैं। और अगर हमारे पास वैल्यू से पॉजिटिव्स हैं इनपुट वैल्यूज, तो हम रेक्टिफिकेशन यूज करते हैं। और लीनियर के लिए अगर हमारे पास वो सिंगल हमारे पास वेरिएबल हो या जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसके लिए हम लीनियर यूज करते हैं। वैसे जी अगर तो ये डेफिनेशन है तो इस लिहाज से हमारे पास सिग्माइड कहाँ पे यूज होगा? हैं जी? Well, this was a simple question और जिसको ऑलरेडी मैं 4-5 दफा डिफाइन कर चुका हूँ in this course, and this was the response. None of you had the clear idea that why we use these functions, activation function, different type of activation functions, and how to choose that in which layer what type of function we have to use. Okay, so the thing is, like again, let's come to the same question. सर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पूछ रहे थे आप? जी सर सिग्मॉइड फंक्शन तो सर वहां नहीं यूज होता जहां हमारे पास सर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, जैसे कि सर हमारे पास 0 to 1 हो, लाइक या तो हमारी मतलब सर मतलब इसी में प्रोबेबिलिटी है हमारी 0 और 1 में, यही वैल्यूज है हमारे पास। Okay, let's come here. Okay, let's see. We have to this one. Let's see. Okay, we have. You guys can see this slide. Okay, so we have different layers, different types of layers over here. One is convolution layer. Okay, इसमें तो खैर convolution operation नहीं होगा परफॉर्म। यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन हम कंसीडर नहीं कर सकते। जो इसके बाद वाले हैं जैसे रेलू है या फुली कनेक्टेड है, या इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन की लेयर होगी। तो यहाँ पे ये जो हिडन लेयर है, यहाँ पे हमने लेट्स सपोज रेलू एक्टिवेशन फंक्शन
रेक्टिफिकेशन एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज किया, यहाँ पे हमने सिग्माइड क्यों नहीं यूज किया, यहाँ पे सिग्माइड नहीं यूज कर सकते थे। या टेंजेंट या लीनियर या लीकी रेलू, इसकी क्या रीजन है? सर जी जो कन्वोल्यूशन लेयर है इसमें जो तमाम एजेस को हमने कनेक्ट करना होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कन्वोल्यूशन के बाद यहाँ पे रेलू लेयर नजर आ रही है। रेलू मतलब ये है कि इस लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, हमने उन न्यूरॉन्स के अंदर रेक्टिफिकेशन लीनियर यूनिट कंसीडर किया। दैट्स व्हाई दिस लेयर इज, उस एक्टिवेशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली इसका नाम रखा गया रेलू। तो यहाँ पे इस लेयर के अंदर रेलू क्यों कंसीडर हुआ है, कोई और एक्टिवेशन फंक्शन क्यों नहीं कंसीडर किया? Simple question is this. I am not talking about the convolution layer. Okay, in the very last lecture, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया था कि it depends on the location and the placement of layer actually, what exactly type of the layer it is and what it is worth for. यहाँ पे जो है पिछली स्लाइड के अंदर ये, इससे आई गेस अगली स्लाइड है, ओके। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास नेट के अंदर मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर्स होते हैं, which are actually these multiple convolution layers are interseparated with activation functions। ठीक है, कि कोई एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे, कुछ इस तरह की लेयर्स होंगी जिसके अंदर हमने कोई स्पेसिफिक एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया होगा और उनका मकसद जस्ट ये हो कि जो इस कन्वोल्यूशन लेयर से हमारे पास डेटा आ रहा है उसको आगे पास कर दें नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर के ऊपर। बट जस्ट पासिंग नहीं करनी, थोड़ा सा एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, ताकि जो है हमारे पास डेटा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि अगर तो हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर के दरमियान में कोई इस तरह की हिडन लेयर्स आती हैं तो वहां पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, what we do, we consider this linear rectification unit, okay. Now this what this sort of activation function performs, यहाँ पे चेक कर लें rectification activation function कि it ranges from 0 to some like value, okay, 0 to 1, okay, या let's say हम कहते हैं कि what it do के यहाँ पे 0 से जो नीचे वैल्यू होगी, let's suppose हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एट द एंड हमारे पास या तो पॉजिटिव या मींस नॉन नेगेटिव नंबर आ सकता है। By using this thing, first of all, we eliminate that possibility. Okay? All the non-negative number will be rectified either between 0 to 1. Okay? And the other thing is कि यहाँ पे एक तो presence of negative numbers इसने eliminate कर दिया। दूसरा ये है कि within specific range actually it will arrange the overall data। जो कि पिछली लेयर से जिस टाइप का डेटा आ रहा है उन नंबर्स को इट विल एक्चुअली स्केल विद इन सम स्पेसिफिक रेंज, ताकि वो एक दूसरे के साथ करीब करीब नजर आए। ऐसा ना हो कि विद इन द नंबर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो अगर तो हमारे पास इस तरह का डेटा हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग
करना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है अगर तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट हों और जो डेटा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो इसके अंदर, डेटा पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज की जो वो डिफरेंस है। तो ये जो यहाँ पे कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो व्हाट वी डू इज बाय यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिंपल फंक्शन, actually it will normalize, it will scale the data as well as remove the possibility of the negative number presence, ठीक है। जस्ट ये क्या कर लेता है, डेटा को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह के लेयर्स में, जैसे कि हिडन लेयर्स इन बिटवीन टू कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं या किसी और भी लेयर हैं, लेकिन उसमें जो उन लेयर्स का जस्ट मकसद ये हो कि एक लेयर से डेटा उठा के दूसरे लेयर तक पहुंचाना है, तो वहां पे हम इसी तरह स्केलिंग टाइप के फंक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट हमारे पास लेट सपोज कोई आउटपुट लेयर हो यहाँ पे, ठीक है। फुली कनेक्शन लेयर के बाद लेट्स से दिस इज द लास्ट फुली कनेक्शन लेयर, और उसके बाद हमने क्या करनी है, डेटा के अंदर आउटपुट प्रोवाइड करनी है। सो फॉर आउटपुट व्हाट वी डू, वी कंसीडर some sort of actually activation function which can provide us with some information के जिस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके ये अंदाजा लगा सकें कि हमारे जो एक स्पेसिफिक सैंपल है या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे लाई कर रही है या कौन सी इंटिटी के साथ करीब तरीन है, मींस हमें लाइकलीहुड बता दे उसका। तो इस तरह के लेयर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे या तो प्रोबेबिलिस्टिक टाइप के या स्कोर कैलकुलेशन के लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो सकते हैं वो यहाँ पे हम इनपुट में देते हैं, जैसे कि हमारे पास सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है या हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन है। तो ये जो जिस तरह सिग्मॉइड फंक्शन है वो सिंपल स्कोर कैलकुलेट करके दे सकता है। इसी तरह सॉफ्ट मैक्स क्या होगा कि इट विल एक्चुअली कैलकुलेट द likelihood through negative log of some entities which are coming from of those scores which are coming from the previous layers, and based on that information we will decide to which category this specific sample lies, like which to which category this specific sample is nearby, okay। तो इस तरह की लेयर्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे हम क्या कर लें, नॉन लीनियर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हम यूज कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास जो हिडन लेयर्स हों इन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम for the simplicity sake what we do, we use a ReLU function, but sometimes in some specific network and type of application for which the network will be used, and also nature of the data, some other activation functions can be used, okay, like the tangent one or leaky ReLU and this sort of things. Now कन्वोल्यूशन लेयर था और उसके बाद जो है हमने हिडन लेयर लेट सपोज जिसके अंदर हमारा मकसद जस्ट ये था कि डेटा को हम स्केल कर ले, तो वहाँ पे रेलू फंक्शन या डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस की इंपॉर्टेंस हमने जान ली। अब थर्ड स्टेप ये था, किसी भी डीप नेटवर्क के अंदर अक्सर आपको पुलिंग लेयर्स नजर आएंगी, ठीक है, लाइक इन दिस वन, इन हियर, okay, in this one we also, after like the rectification, we also consider a pooling layer. अब pooling layer की क्या वर्थ हो सकती, कोई बता सकता है?
तो जो रेलू की आउटपुट है उसको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट कर रही है। नॉट एक्चुअली अ सिंगल पॉइंट। पुलिंग का ये है कि इससे मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे देख लें कि व्हाट वी डू, वी also have to perform some sort of sub sampling criteria over here कि डिफरेंट लेयर से जो हमारे पास पैरामीटर्स लर्नड पैरामीटर्स आ रहे हैं पीछे से, तो उनके ऊपर सब सैम्पलिंग परफॉर्म कर, ताकि जो नेटवर्क की कंप्यूटेशन है, ठीक है, उसको इजी कर सकें। अगर तो हमारे पास हम डेटा को सब सैंपल नहीं करते तो लेयर बाय लेयर मे बी इट इज़ पॉसिबिलिटी कि हर एक लेयर के जो पैरामीटर्स हैं वो एड अप होते जाएं एंड एट द एंड तो देयर विल बी दोज मैनी पैरामीटर्स जिसको कंसीडर करना या जिनको मैनिपुलेट करना, उनके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करना, इट विल बी वेरी एक्सटेंसिव। हमारे पास जो सिंपल मशीनरी होगी वो इस काबिल नहीं होगी, वो स्टक हो जाएगी या इस तरह, या लेट सपोज उसको करने के लिए, मैनिपुलेट करने, कंप्यूटेशन उसके ऊपर परफॉर्म करने के लिए वी विल बी नीडिंग वेरी हाई एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन चीज़ों को means realistic practical बनाने के लिए what we do, we also introduce kind of subsampling criteria over here, okay, ताकि we shall reduce the number of learned parameters. तो ये polling is actually kind of down sampling criteria कि हम learned information को down sample करते हैं, okay. और to down sample the data from previous layer, there are different criterias like average pooling है, max pooling है, mean pooling है, तो different types of operations, pooling operations you can consider to down sample the data. तो इस layer जो pooling layer है इसका just यही function होता है, okay, like this. Okay, let's suppose if we have this sort of information coming from the previous layer to the pooling layer, so what pooling layer will be performing? Again you also have to decide के जैसे कि फिल्टर्स के कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमने फिल्टर का पॉइंट का साइज डिफाइन किया था कि 5x5 हो, 3x2 हो, 2x2 हो, ठीक है। तो इसी तरह आपने पूलिंग के लिए कि आउट ऑफ द होल डेटा इन रीजन फैशन अगर हमें पूलिंग परफॉर्म करनी है तो वो मास्क साइज कितना हो। सो लेट्स सपोज इफ वी कंसीडर 2x2 विंडो फॉर द पूलिंग ऑपरेशन, सो व्हाट इट मीन कि हमारे पास ये जो 4 ब्लॉक्स हैं ऑफ द ओरिजिनल डेटा, उनके ऊपर एट अ टाइम pulling perform होगी max pulling, and if the pulling type is max pulling, so what we do out of these 4 cells, the maximum value number will be placed in instead of these 4 cells, ठीक है। these 4 cells will be converted into just one cell, और उनमें से उस सेल में कौन सी वैल्यू आएगी out of these 4, जिस सेल की सबसे ज्यादा जिसकी बड़ी वैल्यू है, as the name suggests. If it is mean, so it will be like the least one. If it is average, तो इनका average calculate करके यहाँ पे place किया जाएगा, ठीक है। तो one by one जितने भी हमारे पास regions बन रहे हैं by using this sort of mask, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, pulling operation perform किया जाएगा। And again in pulling operation, the one thing is के what will be the size of filter, okay, 2x2 or whatever, so that much region it will be covering. And the other important thing is again what sort of stride you will be considering. So these two information will actually decide the size of output map, okay, pooling map जो हमारे पास आएगा तो उसका साइज इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। With this given information we will get in the output 2x2 map. And in the end, what we do, we need some sort of like, let me go back to this layer. Okay, you guys hold for a minute. I am receiving a call, so I will continue after that.
Okay, so we were discussing कि at the end to provide the output we need some sort of criteria जो कि हमें ये बता सकें कि एक specific information जो आ रही है वो output में किस चीज़ के साथ उसकी likelihood ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स लेट सपोज अगर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं आउटपुट के अंदर, 3 है, 4 हैं, 2 हैं, ठीक है, तो कौन सी क्लास के साथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसकी लाइकलीहुड रिजेम्बलेंस ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन ताकि वो कैलकुलेट कर सके। जैसे कि अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह को देखें तो उनके जो फंक्शंस थे वो हमें प्रोबेबिलिटी या स्कोर्स कैलकुलेट करके दे रहे थे, या अगर हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज़ करें तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि स्कोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इन स्कोर्स को देख के हम थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस किसी चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ रिजेम्बलेंस इन स्कोर्स को देख के क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। And the other criteria is take the scores and perform some sort of negative log likelihood. So we will be getting the probabilities कि a specific sample, how much a specific sample resembles to say some class, some entity, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव लाइकलीहुड का जो क्राइटेरिया है जो हम स्कोर्स का ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द सॉफ्टमैक्स फंक्शन। ओके, तो इस तरह मतलब इन तरह के फंक्शन से या तो हम स्कोर्स कैलकुलेट करके या प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके जो है नॉर्मलाइज्ड और अननॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक सैंपल है या जो पीछे से एक इंफॉर्मेशन आ रही है वो आउटपुट में कौन सी कैटेगरी के साथ ज़्यादा रिजेंबल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड एट द एंड softmax classifier or something, whoever have worked on these deep learning models। तो अक्सर इनके अंदर जो है डीप नेटवर्क्स के अंदर एंड पे हम हमेशा कहते हैं कि वी हैव यूज्ड द नेटवर्क इज यूजिंग द सॉफ्टमैक्स function. So this is actually the requirement. That's why we need softmax function. So ये जो softmax function है ये sort of performing here the classifier task, ठीक है, कि ये एक्चुअली हमें डेटा को क्लासिफाई करके दे रहा है। सो इंस्टेड ऑफ लाइक सेपरेटली कंसीडरिंग अ वेरी एक्सटेंसिव जो कि हमारे पास ऑलरेडी जो वो हैं क्लासिफायर्स हैं जैसे SVM है या कोई और है KNN वगैरह है, तो अलग से एक वेल डिफाइंड जो है क्लासिफायर को यूज करने की बजाय हम एक सिंपल फंक्शन यूज करके क्या कर सकते हैं क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स दिस वाज द CNN। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग CNN? सर इसमें से क्वेश्चन कैसा है? इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन तो मैंने इतने पूछ भी लिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाई वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, या लेट्स सपोज अगर मैं इस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन यूज करूं इस जगह पे तो क्या मसला आ सकता है, ठीक है, या इसका कोई अल्टरनेटिव लेट्स सपोज अगर है तो वो मुझे बता दें, या लेट्स सपोज हमारे पास पीछे से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है और हमने कन्वोल्यूशन लेयर्स कंसीडर किए हैं, एक स्पेसिफिक कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर इतने फिल्टर्स हैं, हर फिल्टर की ये डायमेंशन है, तो हमारे पास पैरामीटर्स लर्न पैरामीटर्स इस लेयर के कितने होंगे या और ऑल नेटवर्क के कितने लर्न पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। हम किस तरह डेटा नेटवर्क की जो है ओवर फिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं या अंडर फिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, तो इस तरह के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप के आ सकते हैं, या कोई सिनेरियो बेस्ड लाइक द लास्ट टाइम। सिनेरियो किस टाइप का हो सकता है? सिनेरियो बेस्ड लास्ट टाइम क्या था कि आपके पास ये डेटा है, ये प्रोपोर्शंस हैं ट्रेनिंग टेस्ट की, ठीक है, इतने इपोज हो गए हैं, दिस सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स एक्चुअली वी आर गेटिंग वेदर यू आर सर्टिफाइड विद सेटिस्फाइड विद द
results or not? If not, so what kind of problem is there? What you think? ठीक है? How can we avoid this sort of problem? तो इस तरह के कोई सिनेरियो बेस्ड लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस थे, तो इधर भी आ सकते हैं. जी सर. Okay, so if no further questions, so let's move towards the RNN. Okay, RNN stands for recurrent neural network. Recurrent neural network, what is this? Let's consider again the standard neural network. Okay, so this is the architecture of a standard neural network. In that network, what we will be having, like the inputs, okay, and then we will be having some sort of hidden layer. And this hidden layer, let's suppose if it is a simple 3-layered network, standard one, so here we will, after that hidden layer, we will get the output. Now here, let me ask you guys, कि एक बड़ा ही जेन्युइन, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म का वो है कि अभी तक अक्सर लोग यहाँ पे, आप लोगों के जो सीनियर्स हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो कभी इस चीज को प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सके. एक यही इसी डायग्राम को कंसीडर करें. ये 3 लेयर्स हैं. क्या मुझे बता सकते हैं 3 लेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ये सर्कल्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोड्स, या इन अदर टर्म्स वी कैन से दीज आर द न्यूरॉन्स. हर एक लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं? ओके, नाउ लेट्स से हाउ वी कैन कम अप विद द आंसर कि इनपुट लेयर के अंदर हमने कितने न्यूरॉन्स यूज करने हैं, हिडन लेयर के अंदर कितने यूज करने, और आउटपुट लेयर के अंदर कितने यूज करने. ये हमें किस तरह पता चलेगा? फॉर्मूला होगा कोई? Okay, there is no formula. Any other suggestion? Okay, so ये सिनेरियोज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और फिर उस पर मल्टीपल हिडन लेयर्स में जो हैं वो मल्टीपल सिनेरियोज उस पर लग सकते हैं इनपुट्स पे, और फिर हमें जो आउटपुट में चाहिए वो मैक्सिमम 2 आउटपुट हम अलाउ कर रहे हैं. मतलब इस तरह के हमारे वो डिपेंड करता है कि हमारा सिनेरियो क्या है, उसमें इनपुट एंड आउटपुट्स क्या होंगे. इनपुट और आउटपुट्स क्या होंगी? इनपुट और आउटपुट क्या होंगी का मुझे समझ नहीं आई. इसको फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है कि अगर टेम्परेचर इतना है तो टर्न ऑन द फैन. तो उसमें हमारे पास जो अब ये रूम का टेम्परेचर और फैन का ऑन करना ऑफ, आउटपुट हमारी ऑन ऑफ होगी. और रूम के टेम्परेचर में हमारे पास मल्टीपल टेम्परेचर्स आ सकते हैं. हिडन लेयर मतलब रूम में है या बाहर है, मतलब डिफरेंट इनपुट्स आ जाते हैं कि उस एरिया की इनपुट क्या है. और हिडन लेयर में वो हमारे पास मैनिपुलेशन होंगी, जो हमारे चेक्स लगे होंगे वो होंगे, और आउटपुट में हमारा जो फैन ऑन ऑफ होगा. ओके जी, सो इसी डिफिनेशन को फर्दर रिफाइन करते हैं. अप टू सम एक्सटेंट में भी आपकी जो डिफिनेशन थी दैट इज रिलेवेंट. एक्चुअली हाउ वी हैव टू कम अप विद द आंसर कि हमने यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स हैं उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स रखने. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ जो ट्रांसफर फंक्शंस के जरिए भी तो हम वो कर लेते हैं ना कि हमने कितने नोड्स रखने हैं या कितनी इनपुट्स रखनी है, तो कितने ट्रांसफर फंक्शन. व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन? मतलब हम जब न्यूरल नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो एक्टिवेशन फंक्शन यू मीन टू से? यस सर, क्या एक्टिवेशन नहीं, वो तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है. एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन तो ये है कि हाउ एक्चुअली यू हैव टू डील द डेटा, इन विच फैशन. लेकिन और हर एक एक्टिवेशन फंक्शन के अगेंस्ट एक न्यूरॉन होगा. मींस न्यूरॉन के अंदर ही हम एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली डिफाइन करते हैं. ठीक है,
सो व्हाट डज इट मीन कि जितने न्यूरॉन्स आपने कंसीडर किए तो उस लेयर के अंदर उतने एक्टिवेशन फंक्शंस भी आपके पास आ जाएंगे, बट इट डजंट आंसर के टोटल कितने न्यूरॉन्स हमने एक लेयर के अंदर कंसीडर करने। सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, लेकिन द इन प्रैक्टिस द एक्सपर्ट्स हाउ दे एक्चुअली कम अप विद द आंसर। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इनपुट लेयर आएगी, ठीक है। इनपुट लेयर में जिस तरह इन्होंने कहा कि जो एट अ पर्टिकुलर सिंगल मोमेंट में, ठीक है, हमने जो इनपुट प्रोवाइड करनी है इस नेटवर्क को, उसकी कितनी डायमेंशन है, ओके, मींस उस इनपुट का साइज, एक सिंगल इनपुट का साइज कितना हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इनपुट लेयर में यूनिट्स कंसीडर करते हैं। यूनिट्स मींस, कोई नहीं यूनिट्स कहता है न्यूरॉन या नोड्स, ठीक है, तो ये डिफरेंट अल्टरनेट नेम्स हैं इनके। तो लेट सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर 100 रोज हैं, 100 instances हैं. So this will be actually the size of data set, and also we said that dimension की भी हमने definition last time check की थी कि जब हम डेटा सेट की डायमेंशन की बात करें, सो वी विल बी रेफरिंग कि उसके अंदर फीचर्स कितने हैं। लेट्स सपोज अगर तो हमारे पास उस एक सिंगल सैंपल के अंदर हर एक सैंपल के 3 डायमेंशंस हैं, मींस 3 फीचर्स हैं, सो देन it is better to select 3 input nodes in the input layer. Okay, 3 nodes in the input layer. Let's say if we have the data set is of 10 dimension, means हर एक sample के 10 features हैं, so it is better to select 10 nodes in the input. Okay, now here let me ask you another thing कि sometime it happens, और जब से ये डीप लर्निंग आई है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि डीप लर्निंग में हमें ये फ़ायदा भी है कि हम फीचर्स कैलकुलेट नहीं करते, हम रॉ इनपुट को जैसे मतलब ओरिजिनल इनपुट जिस फॉर्म में होती है उसको डायरेक्टली उठा के नेटवर्क में इनपुट कर देते हैं। तो उस केस में हमारे पास फीचर्स क्या होंगे या डायमेंशंस हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन की समझ आई है? नो सर। अच्छा जी, मैंने कहा कि कुछ डेटा सेट जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा कि ऑलरेडी फीचर्स डिफाइंड हैं या खुद ही बंदा फीचर्स निकाल लेता है, तो उस केस में तो डायमेंशंस या फीचर्स डिफाइंड हो जाते हैं। उस केस में तो ये अंदाज़ा लगाना सिंपल है कि इस डेटा सेट के अंदर कितनी डायमेंशंस हैं, और उस डायमेंशन को देख के हम यहाँ पे नोड्स की क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। But actually in deep learning, normally what we do कि हम feature engineering नहीं करते, means feature calculation extraction नहीं करते most of the time, not all the time, most of the time. हम let's suppose image है या कोई एक single कोई signal है या जो भी चीज़ है, उसी original data को उठा के input में provide करते हैं। तो उस केस के अंदर data की dimensions हम किस तरह define करेंगे? सो कोई एग्जांपल लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग सब करते हैं। ओके, इनपुट में चले वो ट्रैफिक सिग्नल, सो 3 लाइट्स हैं, तो वो 3 हमारी इनपुट्स होंगी, राइट? मेरा बात आ रही है मेरी? जी। अच्छा, लेट्स से वी कंसीडर कि ये एक इमेज है, ओके, 6 बाय 6। इससे मैं फीचर्स निकालता हूँ, लेट सपोज रफली, लेट सपोज मैं इसकी प्रॉब्लम,
मैंने क्या क्या कर लिया, हाइट कैलकुलेट कर ली, लेट सपोज इसकी ओरिएंटेशन कैलकुलेट कर ली, और इसको मैं इनपुट देता हूँ नेटवर्क में। ओके, सो लेट्स कंसीडर दिस थिंग। इसकी समझ आ गई? तो इस केस के अंदर लेट सपोज नेटवर्क की जो इनपुट लेयर है उसकी क्या डायमेंशन हो सकती है इस केस के अंदर? So connected and not connected. I mean, ये देखें, ये ओरिजिनल इनपुट है, ये उससे मैंने फीचर्स निकाल लिए, और उनको मैं नेटवर्क में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर नेटवर्क की जो इनपुट लेयर है उसके अंदर कितने न्यूरॉन आने चाहिए? 2. ओके। अब लेट्स से आई रिमूव दीज फीचर्स बिकॉज वी से कि जब से हमारे पास डीप लर्निंग आई है, ठीक है, तो उसकी एक बेनिफिट ये है कि हमें ये स्पेसिफिक फीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती। मैं ये ओरिजिनल डेटा उठा के नेटवर्क को प्रोवाइड करता हूँ। इस केस के अंदर इनपुट में कितने यूनिट्स आने चाहिए? तब भी 2 आने चाहिए क्योंकि ये 6x6 है, तो वही हमारे पास इनपुट एक इस टाइम। 2 क्यों आने चाहिए? तो ये तो अरे होगी ना 6 बाय 6। जी, ये एज एन अरे आएगी 6 बाय 6। जी सर, शायद। अच्छा जी। जी, आप में से यार उस बंदे का मुझसे नाम भूला हुआ है जिसने कहा मैंने ANN यूज करके कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो शायद उस बंदे को ये पता हो कि अब यहाँ पे एक और टेक्निकल क्वेश्चन रेज होता है कि आपने कहा कि एरे आएगी। इट आल्सो begs the question, यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोसेस्ड। 2 डायमेंशन इंफॉर्मेशन है, वो इधर नेटवर्क के अंदर किस तरह प्रोसेस होगी, तो ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सो एनी हाउ लेट्स सपोज स्टिक टू द ओरिजिनल वन के देखिए यहाँ पे पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन से हमने 2 फीचर्स निकाल लिया। सो डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ डेटा सेट मीन्स के सारे डेटा सेट की डायमेंशन, हर एक सैंपल से मैंने यही 2 फीचर्स निकाल लिए, तो पूरे डेटा सेट की डायमेंशंस क्या हो गई? 2 हो गई, और अकॉर्डिंग टू दिस नंबर मैंने क्या किए, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। ओके, बट लेट्स सपोज मैं ये फीचर्स एक्सट्रैक्ट नहीं करता, मैं 6 by 6 डायमेंशन की इमेज यहाँ पे इनपुट में देता हूँ। नाउ द थिंग इज के जो इसकी साइज होगी, ठीक है, साइज ऑफ दिस इमेज विल बी 6 into 6, ओके, 36, ओके वेट, 36 नंबर आएगा। मीन्स हमारे पास अगर तो हम इस 2D ग्रिड को सिंगल वेक्टर के अंदर अरेंज कर लें, ठीक है, तो मीन्स हमारे पास इस वेक्टर के अंदर एक सैंपल उठाया, उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हर एक वेक्टर के अंदर 36 एंटिटीज आएंगी जिसको हम कहते हैं डेटा पॉइंट्स आते हैं। उस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं ये पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे पास इमेजेस डेटा सेट के अंदर हैं वो सेम डायमेंशन की हूँ, मीन 6 by 6 की हूँ। उनको जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक सिंगल नंबर आएगा, मीन्स हर एक सैंपल की ये डायमेंशन है, साइज है, ठीक है, 36 डेटा पॉइंट्स उसके अंदर बन जाते हैं। तो हर एक सैंपल का एक ही साइज है, मीन्स उस डेटा सेट की यही डायमेंशन बन जाती है जो कि हमने इनपुट में प्रोवाइड करनी होगी। ओके, सो इन दैट केस whenever we have to define number of units in the input layer, so it is better कि इस नंबर को सामने रखते हुए
आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे डिफाइन करें। या तो कुछ लोग जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन या तो 36 आप कंसीडर कर लें, या लेट सपोज अगर आप तो समटाइम्स इट हैपन्स अगर हम इमेजेस या डेटा के साथ अक्सर इमेजेस के साथ अगर हम डील करें तो कुछ इमेजेस की डायमेंशंस बहुत बड़ी होती हैं, 255 बाई 255 और मे बी इससे भी डायमेंशंस बड़ी हों, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होगा कि ये नंबर अनरियलिस्टिक बन जाता है। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, सम रियलिस्टिक टाइप का जो है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे कंसीडर करने होंगे। अगर तो नंबर ये बहुत बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंगली आपने न्यूरॉन्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। अगर तो कोई रियलिस्टिक नंबर है तो बेशक आप उतने ही न्यूरॉन यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। बट सम टाइम इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि जब आप इसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे रखते हैं तो द रिजल्ट या उससे थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, तो सो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन दैट केस if you reduce the number of units, so it won't matter. Okay, now let's come over here. इनपुट की तो हमने बात की, अब हिडन लेयर के अंदर हमने किस तरह डिफाइन करना होगा कि हाउ मेनी यूनिट्स और न्यूरॉन्स शैल बी देयर। हाँ जी, सर जी वो पहले आपने बताया था कि वो जो रेलू है वो हिडन लेयर के तौर पर काम करता है, लाइक अ हिडन लेयर। तो बीच में कोई फीचर को स्किप करने के लिए या इंटरनली प्रोसेस करने के लिए ये यूज करते हैं? नहीं वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हिडन लेयर के अंदर ये जो न्यूरॉन्स यहाँ पे 4 न्यूरॉन्स शो किए गए हैं, तो लेट्स से ये हिडन लेयर के अंदर एक स्पेसिफिक हिडन लेयर के अंदर मैंने कितने न्यूरॉन्स कंसीडर करने हैं, उसकी क्वांटिटी, उस नंबर को मैं किस तरह डिफाइन करूंगा कि मैंने यहाँ पे 5 करने हैं, लेट्स से मैंने 4 करने हैं, मैंने 3 करने हैं, मैंने 20 करने हैं, ठीक है। सो ये हम किस तरह कन्फाइन करेंगे या डिफाइन करेंगे। एनी अदर पर्सन जिसके पास थोड़ा कोई सजेशन हो, कोई गेस हो। ओके, सो देखें ये वाली जो लेयर है इस लेयर के बाद आ रही है, ठीक है जी। सो इन प्रैक्टिस नॉर्मली अक्सर लोग ये ट्राई करते हैं कि इस लेयर से में जितने यूनिट्स है तो जो सेकंड हिडन लेयर है या इसके बाद जो लेयर आ रही है, ठीक है, उसके अंदर हम नंबर ऑफ यूनिट्स इस लेयर की यूनिट से कम कंसीडर कर लें, पहली बात तो ये है। And in practice, most of the time people consider like half of it. Okay. Okay. Most of the time people consider half of the previous layer. ठीक है, इसकी क्या रीज़न है कि वो कहते हैं कि अगर तो हम यहाँ पे lesser units consider करें, so it will be kind of compressed learning. Okay. Like यहाँ से जितने हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे तो obviously if we consider less amount of units over here, तो out of that data जो previous layer से आ रहा है तो वो क्या करेंगे कि उसकी compressed representation यहाँ पे लैंड करेंगे, तो it is actually beneficial। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द पुलिंग लेयर, ठीक है। उसके बावजूद मतलब वो तो अलग से ऑपरेशन होगा, लेकिन उससे के बावजूद मतलब उसके साइड पे यहाँ पे भी एडिशनली कंप्रेशन हो जाती है, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज के बाय कंप्रेस्ड लर्निंग so we can actually reduce the complexity of the network.
और हालांकि जब आप थ्योरी पढ़ें तो इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज सजेस्ट दिस थिंग, ओके, but in previous in the theory if you see, so there are also networks in which हमारे पास जो input layer है उससे हमारे पास जो hidden layers है उसमें number of neurons उन्होंने ज्यादा कंसीडर किए होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, उस टाइप के नेटवर्क्स को क्या कहते हैं, ओवर एस्टिमेटेड नेटवर्क्स, ठीक है, जिसमें ओवर कनेक्टेड नेटवर्क्स, ओके। ओवर कनेक्टेड नेटवर्क्स क्या होंगे कि जो आपके पास हिडन लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके इनपुट या आउटपुट लेयर से कहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो मोस्ट theoretical point of view the people have tried those kind of versions but they said like okay there is no use, इतना कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट्स या इम्प्रूवमेंट नहीं आती बाय ओवर कनेक्टिविटी या अंडर कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा आप ये जो नंबर मैंने आपको रिडक्शन बताई वो इतना रिड्यूस कर लेते हैं कि वो अक्सर मोस्ट ऑफ द जो मे बी 90% ऑफ द कनेक्शन आपको रिड्यूस कर लें या 80% कनेक्ट कर लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंडर कनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। या हमारे पास गुड कनेक्टेड नेटवर्क्स की डिफाइंड मतलब कोई फार्मूला नहीं है, बट in practice people use this sort of calculation over here, okay। So this is like for the hidden one, and in the output again how we will decide how many neurons we have to use। हाँ जी, तो ये तो डिपेंड करता है ना हमें आउटपुट में किस तरह की आउटपुट चाहिए। किस तरह की आउटपुट्स, क्या मतलब? जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दी थी ऑन ऑफ की, तो हमारे हम्म, पास सिर्फ दो आउटपुट थी उसमें, या ऑन होगी या ऑफ होगी, तो इसके लिए हमें सिर्फ दो नोट्स की जरूरत होती है। अगर इस चीज को मैं जेनेरिकली डिस्क्राइब करूं तो किस तरह मैं कर सकता हूँ? Okay, so in here, okay, so we were defining how to define the number of neurons in the output one, okay। So it depends के आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें आउटपुट में कितनी क्लासेस आनी है, ठीक है। If output class number is 2, so the output neuron shall be 1, okay। Means by using 1 we can actually predict either yes or no, okay, like the way you told. Or let's suppose 3, then we can simply like use 3 neurons. In this way 4 neurons and 5 neurons, it depends on number of classes you have. So this was like some very basic information about this network, and most of the time like people say we have implemented, but when you ask these simple questions about the architecture or selection of the architecture for a specific problem, so they don't have the fruitful answer. So keep this thing in mind, okay। Now the thing is, if we consider these standard networks, so there is a very problem, very big problem, okay। So I said that for each type of data or to perform specific sort of operation, there are lots of variants, and each variant will actually perform good on specific type of data. Now what if the data we are providing to the network is kind of sequential, like the strings, ठीक है, हमारे पास जो sentences होते हैं, या लेट सपोज हमारे पास इस तरह कोई डेटा हो जिसके अंदर सिक्वेंशियल कनेक्टिविटी ज्यादा मैटर करती हो, ठीक है। तो उस तरह के डेटा के ऊपर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के जो ANN है या लेट सपोज CNN भी इवन है, तो वो कोई फ्रूटफुल परफॉर्म नहीं करेगा इन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
it won't be that much good because theoretical जो उसकी requirements हैं ये वाले networks वो fulfill नहीं करते. So for that reason what एक तो ये है कि sequential connectivity हो और दूसरी limitation ये है कि अगर तो what if variable length हमारे पास आए. अभी हमने ये डिस्कस किया कि इमेज की जो एग्जांपल मैंने दी और आप लोगों से पूछा कि कितने यूनिट्स को हमने कंसीडर करना होगा इन अ स्पेसिफिक लेयर. तो वहां पे मैंने एक बात की कि इमेज साइज हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं ताकि जब उनको हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो डेटा डायमेंशंस जो हैं वो हर एक सैंपल के सेम आने चाहिए. ठीक है, मींस इनपुट वेक्टर की लेंथ सेम हो, यूनिफॉर्म हो. ठीक है, उसमें एक लिमिटेशन ये भी है. फर्स्ट लिमिटेशन वाज द सीक्वेंशियल, मींस वहां पे हम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते वेदर द डेटा विल बी प्रोसेस्ड और द नेचर ऑफ द डेटा इज सीक्वेंशियल. ओके, सीक्वेंशियल कनेक्टिविटी जो है वो डेटा सेट के अंदर मैटर कर रही है. द अदर थिंग इज के यहाँ पे जो इनपुट साइज है इफ दैट वेरीज variable input size. So in that scenarios means ये दो main motivations हैं या reasons हैं जिसके against हमारे पास standard neural network जो है वो perform सही नहीं करते. ठीक है, because the standard neural network only accepts fish size and provide fish sized output. ठीक है, if the data set becomes variable or too large, so they won't perform in a good way, or at least you have to restrict the data or you have to restructure the data according to the architecture of a network. Now the thing is for this reason what we do, we introduce a variant of neural network which we say recurrent neural network. In this by this network what we do, we can actually provide the inputs to the data set. ठीक है, one by one means cells बना लेंगे, हर एक सेल को हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे. और एक तो ये है अगर तो हमारे पास इनपुट में वेरिएशन उसके लेंथ में वेरिएशन आती है, सो व्हाट इट मीन कि जस्ट अपेंड अ सिंगल यूनिट ओवर हियर. ठीक है, and you can adjust the requirement of you can easily tackle with the variable length. The other thing is जो सबसे main important है कि these networks can also work as memory units over here. Okay, how? Because the output of a particular cell will be actually connected to subsequent cell. ठीक है, सो इन दिस वे जो आपकी सेल की एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो आउटपुट आ रही है इट वोंट बी लिमिटेड टू द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट. इट कैन बी रीयूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, द कमिंग वन. And in this way actually you can propagate your output on a finite time limit. Okay, so थोड़े बहुत ट्रेसेस जो है आप इसको क्या कर सकते हैं थ्रू आउट द नेटवर्क प्रीवियस आउटपुट्स को आप यूज कर सकते हैं. तो इसी तरह हमारे पास एक सीक्वेंशियल कनेक्टिविटी भी आती है कि एक्चुअली व्हेन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट एक स्पेसिफिक इनपुट आया तो हाउ एक्चुअली द it generated the output और आउटपुट के ऊपर इसका किस तरह इफेक्ट पड़ा. एंड द सेम टाइम इंस्टेंट के जो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे जो हमारे पास इनपुट आएगा और वो जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर प्रीवियस इसका जो हमारे पास आउटपुट थी उसका क्या असर हो सकता है. तो ये चीजें हम नोट कर सकते हैं. ये सिक्वेंशियल जो कनेक्टिविटी है हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस सिंपल टाइप ऑफ जो वेरिएंट है आरएनएन का इसको हम क्या कहते हैं, वेनिला आरएनएन, जिसमें जस्ट जो डिफरेंट जो आरएनएन यूनिट्स हैं. ठीक है, हर एक जो सेल यहाँ पे नजर आ रहा है दिस इज पर्टिकुलर आरएनएन यूनिट. तो हर एक यूनिट को हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूनिट्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरकनेक्ट करते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट अ बिगर नेटवर्क. और इस तरह की जो सिंपल वर्जन है उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट आउटपुट्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देते हैं. इसके अलावा और हर एक यूनिट के अंदर एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा. ठीक है अपना, और मेन थिंग ये है कि आउटपुट को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं. सो दिस वेरिएंट इज एक्चुअली कॉल्ड वेनिला आरएनएन. बट इन हियर
देयर इज अ प्रॉब्लम ये होगी कि अगर तो हमारे पास नेटवर्क ग्रो करता है, मींस प्रॉब्लम हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर जिसको टैकल करने के लिए वी हैव टू कंसीडर मल्टीपल यूनिट्स, means RNN units over here. So here the I mean in between after some units the information will get means will be vanished. Okay, I mean उसको properly store नहीं किया जाएगा. So यहाँ पे एक तो ये है कि ये information propagation के ऊपर limitation आ जाती है. दूसरा ये है कि जो simple vanilla वो हैं हमारे पास RNN है, तो वहाँ पे दे आर मोर प्रोन टू इफ द डायमेंशन गेट बिगर, ज़्यादा यूनिट्स आए तो वो जो इसको फाइन ट्यूनिंग के दौरान जो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगे टू मिनिमाइज द एरर which those gradient will be actually back propagated in the network to minimize the error. So those gradient will vanish in between. Okay. So this is actually the problem with these networks. So इसकी हम क्या कर सकते हैं, refined version जिसको हम जानते हैं LSTM से या long short term memory units. तो instead of vanilla units we can use LSTM into the RNN. Okay, तो इस इन यूनिट्स को कंसीडर करके जो हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनेगा दैट विल बी नॉर्मली लोग उसको शॉर्टली LSTM कह देते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. बाय यूजिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट्स which are more refined as compared to its basic version, हम ये वाले यूनिट्स जो हैं नेटवर्क के अंदर रिप्लिकेट करते हैं और these particular unit will be serving as short term memory. By replicating these short term memory units, actually we can elongate the remembrance of network. ठीक है, that's why it is long. Okay, by replicating this short term memory we can create a longer memory. Okay, so this is like the refined version of one basic or vanilla RNN. In here the main objective is like, okay, we have to propagate this input to the output, but not like this one कि हमारे पास क्या है, जो इनपुट आ रही है वो डायरेक्टली जस्ट एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करके हमारे पास आउटपुट में आ जाए. ठीक है, in between we have another entities as well, like we have different gates over here, like we can see over here. Okay, different gates in between, we have 3 gates we have, and also the activation function. Those gates are like used to पहले उनके नाम मैं आपको बता दूं. एक है forget gate, the other one is input gate, and the third one is output gate. ठीक है, तो input gate actually will के स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो हमारे पास करंट इनपुट हैं वो आउटपुट पे क्या कैसे असरअंदाज हो रही हैं, बाय मींस कौन सी इनपुट्स शैल बी कंसीडर्ड फॉर द आउटपुट. Okay, to calculate the output of on a particular time. तो ये गेट इस चीज को कंट्रोल कर रहा है. इसके अगेंस्ट जो हमारे पास forget गेट है, so this actually tells के if we have to propagate the outputs to the next unit, let's suppose we have to display some information, so which information we have to actually store or display in the output, okay, and which are actually not relevant to us, so that gate actually control that thing. Okay, and जो हमारे पास output है, output gate, that actually like it controls के हमारे पास output के अंदर कौन सी चीजें entities show. So these 3 type of actually gates are used in LSTM, or which actually controls overall these 3 gates जो है, these actually controls the flow of information from input to output. Okay, and इसकी फिर अगर ये gates हम apply करते हैं तो इसके remembrance के ऊपर और output calculation के ऊपर further refinement हम impose कर सकते हैं. So that's why LSTM are considered better than RNN, basic RNN, the vanilla version.
ठीक है। इसके अंदर एक बात तो ये है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, वो ग्रेडियंट वेनिशिंग प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। द अदर थिंग इज के फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एक्चुअली स्टोर सम इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। ओके जी, सो एक RNN की एक और वर्जन भी है जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ LSTM यू कैन यूज GRU, गेटेड रिकरेंट यूनिट्स। ओके, तो उनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, RNN डेवलप कर सकते हैं, रिकर्ड न्यूरल नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। अब जो GRU है और LSTM के अंदर भी गेट कॉन्सेप्ट है, GRU के अंदर भी गेट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी 3 गेट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर गेट, इनपुट एंड राइट गेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है हाउ दोस gates work and how they actually control which information shall be displayed, तो इनकी थोड़ी ये connectivity that is different from LSTM, and normally consider that GRU are as their connectivity is simpler than LSTM, तो वो they result in fast processing of the information, तो उनको आप देख लें उस वर्जन को भी। Any question related to these RNNs? सेम क्वेश्चन, इसमें से पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा? And the answer is same. ठीक है सर। सर अगर सिनेरियो बेस में आएंगे तो, लेकिन सिनेरियो बेस यहाँ से किस तरह बनेगा? सिनेरियो बेस किस तरह बनेगा? चलें ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सो द थिंग इज कि ये हमारे पास LSTM है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे हमने कहा कि CNN को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन द विजुअल डेटा, लाइक उस टाइप के डेटा के ऊपर वो बड़ा अच्छे से परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब इस तरह जो RNN है, इनकी एप्लीकेबिलिटी इन द डेफिनेशन आई सेड लाइक सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब कंसीडर किया जाता है कि दे विल यील्ड बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर वेरिएंट्स ऑफ ANN, सो दैट्स व्हाई दे आर डिजाइन्ड, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जहाँ पे हमारे पास जो सिंटेक्सेस होते हैं, मींस जो स्टेटमेंट्स होती हैं, दोज आर ऑफ वेरिएबल टाइप, ठीक है। द अदर थिंग इज के हमारे जो स्पीच है, ठीक है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे सिक्वेंशियल कनेक्टिविटी पाई जाती है टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स को हमने इंटरलिंक करना होता है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू, हमने एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कोई आउटपुट कैलकुलेट करके उसको ओवरलुक नहीं करनी होती है। सो इट इज बेटर टू स्टोर द प्रीवियस इंफॉर्मेशन एज वेल, सो दैट फाइनल वेरिएंट्स वर्जन ऑफ द आउटपुट यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, या हमारे पास लेट सपोज ठीक है स्पीच प्रोसेसिंग हो गई, जिसके अंदर इट मैटर्स के काफ़ी टेम्पोरल कनेक्टिविटी हो। इसके अलावा क्या मैं RNN को यूज कर सकता हूं ऑन विजुअल डेटा? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। हाँ जी, क्वेश्चन की समझ आई है? सर रिपीट कर दें। क्या मैं RNN को विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकता हूँ? मींस
इमेज प्रोसेसिंग या वीडियो प्रोसेसिंग के टास्क के अंदर RNN को मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. लेकिन क्या इस तरह की विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए CNN बेहतर नहीं है? हाँ जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है सर। अभी आ रही? हेलो, जी सर, आ रही है आवाज आपकी? अच्छा, मे भी आपके फिर नेटवर्क में कोई इशू होगा। सो मैं ये पूछ रहा था कि देखें, अगर तो हम विजुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर RNN यूज़ करते हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए RNN यूज़ करते हैं, सो वाई, लाइक क्या मोटिवेशन होगी, क्या रीज़न होगी कि इंस्टेड ऑफ CNN में RNN कंसीडर कर रहा हूँ? जी, ये क्वेश्चन है और इसके ऊपर आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे इसका आंसर पूछना है। Okay, जी, so let's come to the another version of an ANN, and these are like very good ones, the autoencoders. Easy to So use. break. बस ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ी सी स्लाइड रहती हैं, इसको बस फिनिश करके तो वो करते हैं, जी सर। लेक्चर सर आज आप जल्दी फाइल कर देंगे? जी। ठीक है सर। So let's talk about the autoencoders. So autoencoders are again neural networks, but इसके अंदर how they actually train it differs. जो पिछले दो हमने वर्जन्स डिस्कस किए या इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने स्टैंडर्ड ANN और डीप ANN हमने डिस्कस किए, तो ये सारे सुपरवाइज्ड लर्निंग मैकेनिज्म थे। मींस उसके अंदर जो लर्निंग होती है नेटवर्क की ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, दैट इज सुपरवाइज्ड, ठीक है। बट इन ऑटो इनकोडर्स दीज आर कंसीडर्ड by itself, autoencoder is considered unsupervised mechanism. But if you create a deep neural network using autoencoders, so that those are considered, the training is considered, or learning mechanism is considered semi-supervised one. Okay, why? I will tell you later. Okay, so actually, autoencoders, इसकी कुछ मेन मोटिवेशंस होती हैं। ऑटो इनकोडर्स हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहली मोटिवेशन ये है कि हम ऑटो इनकोडर हो गए या इससे रिलेवेंट नेटवर्क है, जिस तरह डीप बिलीफ नेटवर्क हैं जो कि RBM से बनते हैं। RBM बाय इटसेल्फ हो गया ये ऑटो इनकोडर, इसको हम यूज करते हैं लेटेंट वेरिएबल्स को जानने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंस्टेड ऑफ लेटेंट वेरिएबल हम इसको डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस टू आर द टू मेन मोटिवेशन। इसके अलावा और भी मोटिवेशंस हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास डीनाइजिंग हो गई किसी चीज़ की या रिकंस्ट्रक्शन हो गई किसी सैंपल की, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। बट दिस टू मोस्टली जब हम इन नेटवर्क्स को कहीं पे अप्लाई करते हैं तो उनके बिहाइंड मोस्टली ये दो हमारे पास मोटिवेशंस इसकी होती हैं, ठीक है। या तो लेटेंट वेरिएबल्स जानने के लिए या डेटा सेट की जो डायमेंशनैलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक। Now the question is, can anybody tell me what is latent variable and what do we mean by dimensionality reduction? हाँ जी, any random guess? ये लेटेंट वेरिएबल डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का तो पता है कि उसमें हमारे डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं, लेकिन लेटेंट कौन? अच्छा, लेटेंट वेरिएबल, जी आप कुछ बता रहे थे।
ओके, सो डायमेंशनलिटी रिडक्शन तो चले ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव द आइडिया कि जो हमारे पास डेटा सेट की डायमेंशंस होती है, मींस जो नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, वी अप्लाई सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो हमें बताता है कि दीज फीचर्स आर इंफॉर्मेटिव व्हिच कैन बी लेटर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन और व्हाटएवर टास्क इट इज, और द अदर वंस आर नॉट इंफॉर्मेटिव। तो हम जो नॉन इंफॉर्मेटिव डायमेंशंस होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, उसको हम अवॉइड कर लेते हैं। जो इंफॉर्मेटिव होते हैं जस्ट उनको यूज करके हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफाइंड एल्गोरिथम्स भी हैं, जैसे कि PCA, LDA, ठीक है, और भी बेतहाशा डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम्स हैं, या जो है वो स्पेसिफाइड मींस एल्गोरिथम्स है, अलग से एल्गोरिथम्स है, या सेम फंक्शनैलिटी हम इस तरह के जो ANN के आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे ऑटो इनकोडर हो गए, RVMs हो गए, तो इनको यूज करके भी एक्चुअली हम ये अवेल कर सके बाय इटसेल्फ। इफ वी सी, तो up to some extent actually this thing is happening in each and every dimensional reduction जो है, it happens in each and every type of deep neural network, ठीक है। क्यों होती है? वहाँ पे अगर आप आर्किटेक्चर को देखें तो हम लेयर वाइज जब हम डेटा को प्रोपोगेट करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हर लेयर के अंदर हम क्या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को लेसर कंसीडर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लेयर बाय लेयर या सब सैम्पलिंग भी करते हैं साथ में डेटा की, तो हम वो डेटा डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशनलिटी, ये जो डीप ANN है, तो ऑटोमेटिकली डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए भी यूज हो सकते हैं। बट इन why these Boltzmann machines are and autoencoders are considered specifically for this, because they also apply latent variable concept over here. देखें, एक वेरिएबल्स होते हैं जी। सर मैं बता रहा था कि ये जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं, ये वैसे स्पेसिफिकली इंसर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दूसरे वेरिएबल्स के साथ मिलके इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं। जिस तरह मिक्सचर मॉडल्स और ये बोल्ट्जमैन मशीन वगैरह, इसको हम यूज करके ये लेटेंट वेरिएबल्स को हम अपने रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। सही सही। इसी डिफिनीशन को फर्दर थोड़ा सा रिफाइन अगर कर लें कि सही समझ आ जाए। देखें, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, इनपुट इंफॉर्मेशन या ओरिजिनल डेटा होता है, ठीक है। उस ओरिजिनल डेटा को हम क्या करते हैं, अगर तो हम स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग मैकेनिज्म पे जाएं तो हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे, ठीक है। फीचर्स के बाद फिर हमने वो डेटा जो है वो नेटवर्क में प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हमने जब डीप लर्निंग हमारे पास आई तो अक्सर लोग इसलिए मोटिवेट हुए टू यूज द डीप लर्निंग के बीच वाला जो फीचर इंजीनियरिंग का स्टेप था, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, because these hierarchical models, deep networks actually through their complex architecture and using non-linear activation functions, they can learn the salient information from the original data directly, ठीक है। और स्पेशली अगर तो हमने फीचर्स को लर्न करना है, ठीक है। अब ये जो फीचर्स डायरेक्टली जो नेटवर्क लर्न करेगा, इसको हम नॉर्मली लेटेंट वेरिएबल से एड्रेस करते हैं। जो ओरिजिनल आपके पास इंफॉर्मेशन है, दैट इज ओरिजिनल फीचर्स और ओरिजिनल डेटा सेट, बट यूजिंग नेटवर्क्स टू लर्न द एब्स्ट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन, जो एब्स्ट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन ये नेटवर्क लर्न करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, those variables are known as latent variables. अब कुछ नेटवर्क्स के जो latent variables हैं, जैसे CNN वगैरह, उनको हम कहते तो हैं फीचर्स, एज ए फीचर हम यूज कर रहे हैं, बट whenever we project those variables on the feature space, तो उनके अंदर जैसे फीचर्स नॉर्मली बिहेव करते हैं वैसे वो नजर नहीं आते। Those are mostly overlap on each other, ठीक है। लेकिन whenever we use these autoencoders or Boltzmann machine, तो वो exactly जैसे अगर मैंने ओरिजिनल डेटा से वो वाले latent variables, जैसे मैंने ओरिजिनल डेटा से स्पेसिफिकली हैंड इंजीनियर्ड फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हों और उसके ऊपर, उन फीचर्स के ऊपर PCA अप्लाई किया हो, तो हमारे पास क्या होगा,
जब भी मैं फीचर्स के बेस के ऊपर वो वाले लेटेंट वेरिएबल प्रोजेक्ट करूंगा तो हमारे पास स्पेसिफिक क्लियर जो है क्लस्टर्स बनेंगे, सेपरेट क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई these specific type of networks are renowned for learning refined latent variables which can be later used as features into different tasks. And also these works better to reduce the functionality because जैसे कि PCA के अंदर मैकेनिज्म होता है तो ये लेटेंट वेरिएबल जानने के लिए सेम मैकेनिज्म ऑटो इनकोडर्स के अंदर होता है या RVMs के अंदर होता है, ठीक है। वही एक्चुअली इन्फ्लुएंस डेटा के ऊपर आ रहा होता है, तो दैट्स व्हाई इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन डायमेंशनलिटी रिडक्शन एज वेल। Okay, so now why autoencoders? Actually, I already told कि map high dimensional data to dimensional for visualization means reducing the file size, ठीक है, by reducing the dimension. और जो reduced dimension है जब मैं उसको 2 dimensional means उसके या ग्राफ बनाऊं या कर्व बनाऊं 3 dimension के अंदर, तो वो जो क्लस्टर्स होंगे बड़े रिफाइंड क्लस्टर, नॉन ओवरलैपिंग, non redundant data हमारे पास होगा actually. That's why this can be used as features for later tasks. And the other thing is के apart from dimensionality reduction, as I told you, कि these are used to learn abstract features in an unsupervised way. ठीक है, अलग से मैंने कोई फीचर एक्सट्रैक्शन स्टेप इम्प्लीमेंट नहीं करना होगा, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर लें, what to do like वो features raw data से learn करने, just like principal component analysis जिसके अंदर हम क्या करते हैं, principal component analysis के अंदर के we actually project the original data into a k dimensional high dimensional actually subspace, और फिर हम क्या करते हैं, डेटा डिफरेंट हाई डिमेंशनल डेटा के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्टेड होता है डेटा होता है, तो उसके दरमियान हम इक्विलिटी एंड मींस सिमिलरिटी जानते हैं बाय कैलकुलेटिंग द इक्विलिडियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी मैट्रिसेस जो सिमिलर एक दूसरे के साथ रिजेंबल्ड पॉइंट्स होते हैं, तो उनको हम इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते, वी जस्ट फोकस्ड ऑन दोस पॉइंट्स विच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो उनके बेस के ऊपर डिफरेंट सैंपल्स को रैंक करते हैं, मींस डिफरेंट फीचर्स को या डायमेंशंस को, डेटा पॉइंट्स को रैंक करते हैं कि विच आर रिडेंडेंट, विच आर नॉन रिडेंडेंट, ठीक है। So this is actually the mechanism of principal component analysis, ठीक है, कि हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास इगन फैक्टर्स कैलकुलेट करके उससे हम सिमिलैरिटी डिफरेंट डेटा डायमेंशंस की कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है डेटा को रैंक करते हैं। जो हमारे पास हाईली रैंक्ड डेटा सेट होता है तो उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉर्म, एंड इन सो ऑन एक मैट्रिक्स फॉर्म में सारे रैंक्ड फीचर्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे पास आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो मैट्रिक्स आती है, ठीक है, जो आउटपुट आता है एक्चुअली दैट इज आल्सो प्रोसेस्ड, वो भी लेटेंट वेरिएबल्स ही होते हैं, बट इन द जो इंटरनल वो मैकेनिज्म है PCA का, दैट इज लीनियर, हाई डायमेंशन में डेटा कन्वर्ट करके लीनियराइजेशन उसमें इंट्रोड्यूस करके हम सिमिलरिटी चेक करते हैं। बट इन हेयर डीप ऑटो इनकोडर्स के अंदर हम ये लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी कर सकते हैं एंड नॉन लीनियर भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर किस तरह कर सकते हैं, लीनियर तो ये है कि सिंपल आप क्या कर लें, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस आप यूज कर लें, ठीक है, या नॉन लीनियर डेटा के साथ अगर डील करने हैं, सो सिंपली व्हाट यू डू, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यू जस्ट यूज इन द हिडन लेयर्स, so you can actually deal with the non-linear data. In this way you can reduce the dimensionality of non-linear data, and actually what it focuses on के जो आपके पास non-linear
डायमेंशन है या डेटा सेट है, तो मैनीफोल्ड मैकेनिज्म, नॉन लीनियर मैनीफोल्ड मैकेनिज्म यूज करके इट विल एक्चुअली कैलकुलेट कि कौन से पॉइंट्स जो डेटा सेट इनपुट में मेरे पास आ रहा है, कौन से पॉइंट्स उस डेटा सेट के अंदर जो है सिमिलर हैं और किस में डिफरेंस ज्यादा है। जिनमें डिफरेंस ज्यादा होगा एक्चुअली जस्ट एज द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो क्या करेगा, इट विल रैंक दोज डेटा पॉइंट्स हायर। ठीक है, जो सिमिलर होंगे जिसमें डिफरेंस कम होगा, सो इट विल कंसीडर इट एज ए रिडंडेंट डेटा, और उसकी जो रैंकिंग होगी, ठीक है, दैट विल बी लीस्ट, उसको प्रायोरिटाइज इतना नहीं करेगा। सो एट द एंड इट विल प्रोवाइड यू विद द सेम रिजल्ट लाइक PCA, मींस बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट इसकी जो रिडक्शन कैपेबिलिटी है, इट इज कंसीडर मोर देन PCA, बिकॉज PCA के अंदर जस्ट वो क्या करता है कि लीनियर फैशन के अंदर हम हायर डायमेंशन में डेटा सेट को कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो नॉन लीनियर डेटा सेट है पहले उसको हम लीनियराइज कर लें बाय कंसीडरिंग हायर डायमेंशन, ठीक है, प्लेन, एंड आफ्टर दैट वी रिड्यूस द dimensionality. But in here, by using non-linear activation function, actually we and a non-linear manifold mechanism, we can rank the features or reduce the features in a non-linear dimensionality, non-linear way. Okay, so this will be directly like non-linear dimensionality reduction. अब डायमेंशनल रिडक्शन यहाँ पे इफेक्ट किस तरह आएगा, लेट्स से अब यहाँ पे देखें, एक रैंडम मैंने एक आर्किटेक्चर कंसीडर किया है, सो जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट, ओके। नाउ इन हियर के in the previous layer we have 100 units over here, but suddenly what we do, okay, we in the next layer we are considering, I just somebody just consider a single unit, means single neuron यहाँ पे consider किया हुआ है। So what does it mean कि यहाँ पीछे जो हमारे पास 10 neurons थे उससे हमारे पास 10 outputs आ रही थी, but suddenly it just like reduced के पीछे से जो 10 हमारे पास डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, जस्ट उसके अंदर मुझे जस्ट ये बता दें कि उनमें से एक सिंगल डेटा पॉइंट बता दें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच एक्चुअली बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ डेटा सेट जो ओरिजिनल डेटा इनपुट में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स द सॉर्ट ऑफ डायमेंशनैलिटी कि आप इनपुट से जो है मुकाबला इनपुट आप ऑटोमेटिकली बाय कंसीडरिंग लेसर यूनिट्स इन द नेक्स्ट लेयर आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हाउ दिस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, हाउ इट विल द नेटवर्क विल कम अप विद द आंसर के कौन सा डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा, कौन सा एक्चुअली लेटेंट वेरिएबल सबसे इंफॉर्मेटिव है, सो थ्रू बाय यूजिंग नॉन लीनियर मैनीफोल्ड मैकेनिज्म, ओके। अब जो डीप ऑटो इनकोड या ऑटो इनकोडर्स हैं, ओके, लेट मी टेल यू अनदर थिंग। ऑटो इनकोडर्स के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास एनकोडर एंड द अदर वन इज एक्चुअली द डिकोडर। एनकोडर का क्या होगा, हम इस नेटवर्क को एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ये एनकोडर पार्ट इससे लेटेंट वेरिएबल्स जानने की कोशिश करेगा, एब्स्ट्रैक्टेड वेरिएबल्स जानने की कोशिश करेगा, जिसको हम लेटर फीचर्स एज ए फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो लेटेंट वेरिएबल होंगे ये एक्चुअली कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ओरिजिनल डेटा होगी, ठीक है। एंड लेटर ऑन हम क्या कर सकते हैं कि इन कंप्रेस्ड वेरिएबल्स को, अच्छा, इस पार्ट को हम इनकोडर कहेंगे, जिसमें हम
लेटेंट वेरिएबल जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड टर्म एज इनकोडर्स। ये जो दूसरा पार्ट है इसको डिकोडर हम कहते हैं। डिकोडर हम क्या करेंगे, जो लेटेंट वेरिएबल्स नेटवर्क ने इनकोडिंग के थ्रू जाने थे उससे दोबारा जो है ओरिजिनल इनपुट एक्स को रिकंस्ट्रक्ट कर, ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली डिकोडिंग पार्ट। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिनाइजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कामों के लिए ये नेटवर्क्स हम यूज कर सकते हैं। और ये सब काम वो ये अनसुपरवाइज्ड मैनर में कर रहा होता है कि हाउ इट डू के ये एब्स्ट्रैक्टेड रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली कैलकुलेट करता है और फिर उसको एक्सपेंड करता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में। और जब ये दो रिजल्ट्स हमारे पास एक्चुअली सिमिलर आ जाते हैं या बड़े ही लेस मार्जिन से डिफर करते हैं एक दूसरे से, सो एट दैट पॉइंट वी से ओके दीज वेरिएबल्स the compressed information is very useful. This if I use perform a reverse operation on this one, so it can result in the original near to original out inputs, ठीक है। At that point we say okay this network is like fully trained and can be used for our intended purpose. This purpose can be just by using these, picking these variables, latent variables, we can provide to some classifier to classify the data, or we can actually denies the data, or we can actually like just reduce the dimension over here, or we can actually replicate the data by introducing the similar copies, multiple copies of the same input, ठीक है। तो different कामों के लिए हम ये networks use कर सकते हैं। Okay, so this thing I already covered कि non-linear autoencoders जो होते हैं that actually performs, जो हमारे पास एक PCA जो है Peaceful Component Analysis, that is like very popular dimensionality reduction mechanism. So normally it is considered that it can actually perform well because it has the capability to deal with the non-linear data and reduce the dimension of that kind of data as well, ठीक है। अब जो ये था सिंपल ऑटो इनकोडर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ऑटो इनकोडर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास इनकोडर होता है और डिकोडर होता है। नाउ द थिंग इज कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डीप ऑटो इनकोडर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर टू दिस इज कि हम अगर ऑटो इनकोडर्स, मल्टीपल ऑटो इनकोडर्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, सो इन दिस वे एक्चुअली we can create a deep autoencoder। और इस deep autoencoder में क्या होगा कि एक autoencoder से जो आउटपुट आ रही है दूसरे को हम वो इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इन दिस वे इट विल एक्चुअली क्रिएट अ लेयर वाइज डीप नेटवर्क। और इसमें जो डिफरेंट autoencoders हमने स्टैक किए हैं, हर एक autoencoder को हम लेयर बाय लेयर ट्रेन करते हैं, ठीक है, इन एन अनसुपरवाइज्ड मैनर। और ठीक है, तो इस तरह हर एक लेयर जो है उसकी अपनी ट्रेनिंग परफॉर्म होगी और वो अपने लेटेंट वेरिएबल जो है लर्न करेगा। एट द एंड जो हमारे पास लास्ट वेरिएबल होगा, लास्ट ऑटो इनकोडर होगा, उसके जो हमारे पास इनकोडेड आउटपुट्स होंगी उनको हम उठा के क्या कर लेते हैं, किसी क्लासिफायर को प्रोवाइड करते हैं, लाइक द सॉफ्ट मैक्स वन, तो वो हमें डेटा क्लासिफाई करके दे देता है। अब ये जितने भी ऑटो इनकोडर की ट्रेनिंग है बाय इटसेल्फ, दीज आर कंसीडर्ड एज these are actually done in the unsupervised manner, okay। But I also said that after the use of the last layer of the last autoencoder, we also append softmax kind of classifier या कोई और classifier भी हो सकता है, it is possible। तो वो जो classifier की वो होगी, ट्रेनिंग होगी, ठीक है, आफ्टर द लास्ट autoencoder, जो वो वाला पार्ट है उसको अगेन हमने अलग से ट्रेन करना होता है, जिसको नॉर्मली हम टर्म करते हैं फाइन ट्यून के, कि वो क्लासिफायर को जो
लास्ट लेयर से हमारे पास कोड्स आएंगे जो एज ए फीचर्स हमारे पास हम सर्व कर रहे हैं। उन फीचर्स को उठा के हमने उस क्लासिफायर को प्रोवाइड करना होगा। उस क्लासिफायर को हम फाइन ट्यून करते हैं, मींस उसके ऊपर अगेन से ट्रेनिंग करते हैं उस क्लासिफायर को। तो ये वाली जो ट्रेनिंग पार्ट है या फाइन ट्यूनिंग पार्ट है, दैट इज कंसिडर एज द सुपरवाइज्ड वन। Okay, so that's why I said if by itself you consider the training of autoencoder, it is done in unsupervised manner. But if you construct a full-fledged deep neural network out of autoencoders or RBMs, which can actually classify or regress the data, so that is considered, overall that network is considered as semi-supervised network. Okay. Now by itself, अगर तो जस्ट हम ऑटो इनकोडर्स को देखें तो दोज आर कंसीडर्ड टू बी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, but there is also a variant of autoencoder available which we say variational autoencoder, जो कि probabilistic थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम गॉसियन विंडोज या कर्नल फंक्शंस, आप कह लें एक्टिवेशन फंक्शंस, आप कह लें यूज कर सकते हैं, जो कि ये जो लेटेंट वेरिएबल लर्निंग कैपेबिलिटी है या डेटा रिडक्शन कैपेबिलिटी है, इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, बट देयर इज अ वेरिएंट अवेलेबल व्हिच कैन फर्दर एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ ऑटोएनकोडर्स एंड कैन बी यूज्ड इन मोर डिफिकल्ट टास्क एज वेल, व्हिच विल प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, सो दिस इज लाइक द this was all about autoencoders. So keep in mind, autoencoders are by itself, autoencoders are unsupervised networks which can learn latent variables in a good manner, and it can also perform dimensionality reduction better than the PCA or any other criteria we just solely जो theoretical point of view से linear dimensionality reduction के ऊपर काम कर रही। ठीक है, any question related to autoencoders? any question किसी का? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Okay, in case you don't have a question, so this was all for this lecture, and the other thing is के नेक्स्ट लेक्चर से पहले बल्कि अभी जाके आप उस लिस्ट के अंदर अपने एंट्रेंस कर दें। ठीक है, ग्रुप इंफॉर्मेशन और टॉपिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो है प्रोवाइड कर दें, सो दैट आई कैन चेक। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ये कोर्स जो कंटेंट्स है वो कवर हो जाएंगे। So it's better before the next lecture prepare the presentation. So most probably if the contents like इतने कुछ ज़्यादा contents नहीं रहते, so maybe in the midway we will cover those contents. ठीक है, if it happens, so you shall have some presentation in hand so that you can start presenting. जैसा कुछ अभी कंटेंट्स रहते हैं अभी इसके जो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। आज ही कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रांसफर लर्निंग है और जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो ओवरव्यू है। ठीक है, जो छोटे छोटे मतलब तो स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं, तो होपफुली वो कल मतलब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें कवर हो जाएंगे, और वो कोई इतने ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है, तो मिड ऑफ द लेक्चर आई गेस होपफुली वो कवर हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि आप अभी से प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में जो है कम से कम एक प्रेजेंटेशन में भी किसी को प्रेजेंट करनी पड़ सकती। तो ये सर ये एक प्रेजेंटेशन में कितना टाइम लेंगे आप एक ग्रुप पे? इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि कितना है, लेकिन कम से कम जो है मे बी लाइक 30 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा ठीक।
और सर मैंने पूछना था कि जो हमारे जो फाइनल एग्जाम्स अब होंगे वो मिड के बाद से लेके अब तक जो हम नेक्स्ट वीक तक पढ़ेंगे वो आएगा ना सारा? जी बिफोर मिड तो नहीं आएगा ना? नहीं, बिफोर मिड नहीं आएगा, मतलब स्पेसिफिक वो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट लेट सपोज अगर तो मिड से पहले वाले यूज हो रहे हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, तो वो थोड़े बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ आ सकते हैं। और सर मैंने ये भी कहना था कि जो जो असाइनमेंट थी ना जो कल जमा कराई उसमें ना वो मैंने की थी उस पे एक, तो उसकी मैंने ना IBNB जो उसकी एक्सटेंशन थी ना जो हमारी डायरेक्टरीज में सेव होती वो मैंने सेंड कर दी थी, तो वो इशू तो नहीं होगा आपको? जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन है, मतलब जो हमारी सी विंडोज में होती हैं, मतलब IBNBY के नाम से उसकी एक्सटेंशन होती है, तो वो मैंने डायरेक्टरी से उठा के ना वही पूरी सेंड की थी। तो मुझे बाद में जब मैंने उसको चेक किया तो वो तो मतलब कि बहुत XML में, मतलब XML में दिखा रहा था उसका, तो वो इशू तो नहीं होगा? आप देख लेंगे उसका खुद ही कि मैं आपको ईमेल करूं कि मेरा कोड क्या था? नहीं, आपने ये डायरेक्टरी क्यों सेट की? वो जो कोड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि आपने कोड शेयर करना है, उसके लिए की थी। यस सर, तो जैसे आपके हम पास जुपिटर वो नोटबुक में हम पाइथन प्रोग्राम आई पाइथन का जो फाइल होती है, ठीक है, वो आपके पास नहीं पड़ी हुई? जी यस सर, ये वो वो आई पड़ी है? पाइथन वाली कह रहा हूँ जो IPN जी, हाँ वही मैंने सेंड कर दी थी। तो ठीक है, उसको अगर तो जब मैं कोड विजुअल XML में, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अगर तो रिक्वायर्ड होगा तो आपसे पूछ सर लूँ। वो एक्चुअली उसको अगर हम किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करें ना तो वो हो जाएगा। मतलब XML का कोड आ जाता है, और यस अगर सर जी, जुपिटर में उसे करें ना इंपोर्ट तो वो बिल्कुल ठीक आती है। ठीक है, यस सर कोई ये इशू नहीं है, नहीं हाँ नहीं होगा, कोई इशू ठीक। नहीं। अटेंडेंस होगी। मुझे नहीं, मुझे यही अटेंडेंस नहीं है। कंफ्यूजन मुझे यही कंफ्यूजन हो रही थी कि आप उसको किस तरह देखेंगे, क्योंकि उसको अगर किसी भी नोटपैड में ओपन करते थे ना तो वो इशू कर रहा हाँ, था। वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में शो होगी ना, खैर वो ठीक है, कंसोल विंडो में मैं वो कर लूंगा। चलो ठीक। और सर पाइथन ये में। मैंने एक ये अपने रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग आपसे पूछना था। मैंने एक बार भी जब हम क्लास में थे मैंने तब भी पूछा था कि जो मेरा जो पेपर है ना जो हम आपको प्रेजेंट करेंगे उसमें मैं उर्दू लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ। सही। तो जब हम उस पर अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगाते हैं ना, चाहे कोई भी KNN या SVM, तो हम्म, वो उस पे ना उर्दू लैंग्वेज पे इशू होता है कि आपकी वैल्यूज ना न्यूमेरिक होनी चाहिए। मतलब हम्म, न्यूमेरिक वैल्यूज हो ना, मतलब कि जिस आपका डाटा सेट था ये सैलरीज वाला, वो हम्म। बड़ी इजीली हमने ना उसको कर लिया। लेकिन अगर ये डाटा सेट में अगर उर्दू लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज कोई और होता तो वो इशू करता। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, तो आपने कहा था इसके लिए हम ना वो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है शायद NLTK के नाम से, वो यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं नहीं, देखें आप, एक्यूरेसी निकालने के लिए? लेट सपोज, देखिए मे बी आपका सिनेरियो इस तरह हो कि आपने जो उर्दू वर्ड्स हैं या आपके सिंटेक्सेस हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट आपने किस तरह अरेंजमेंट की है या डिज़ाइन किया है इन्वायरमेंट को। सो मे बी आपने फीचर्स उससे एक्सट्रैक्ट किए हों, वो एक्सट्रैक्टेड फीचर्स जो हैं लेट सपोज आप यूज़ कर रहे हैं, या मे बी आप उर्दू के जो कीवर्ड्स हैं वो उठा के डायरेक्टली एल्गोरिथम को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पहले आप क्या कर लें कि जो आपका कैटेगोरिकल डेटा है, लेट सपोज किसी करेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको पहले न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। मींस इसलिए वो एरर आपको दे रहा है कि आप करेक्टर्स एक्चुअली एल्गोरिथम को प्रोवाइड कर रहे हैं, एल्गोरिथम करेक्टर्स को नहीं पहचानता। पहले आप उन करेक्टर्स को क्या कर लें, न्यूमेरिक फॉर्म में थ्रू एनी इनकोडिंग स्कीम, जैसे कि उस के अंदर हमने कैटेगोरिकल डेटा को थ्रू हार्ट इनकोडिंग कन्वर्ट किया था न्यूमेरिक्स में, ठीक है। तो उस तरह के एल्गोरिथम्स इसके ऊपर अप्लाई करके आप सारे डेटा को यूनिफॉर्मली न्यूमेरिकल इसमें कन्वर्ट कर दें और उसके बाद आप क्लासिफिकेशन परफॉर्म करें। सो होपफुली आपका जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि कोई मतलब ऐसे मैं लेना चाह रहा हूँ, या सामने ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आपकी स्लाइड पे, अगर ये सारी हमने डिस्क्रिप्शन एज अ उर्दू करनी तो हम इसको फिर किस तरह करेंगे? उसमें मैथमेटिकल में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको न्यूमेरिक्स में? देखें, इसमें तो पहले इसके फिर वो प्री प्रोसेसिंग स्टेप भी आ जाते हैं ना, कि आप क्या यस करते सर, हैं वो कि वो क्यूरीज प्री उठा के प्रोसेसिंग करनी। उसकी टोकनाइजेशन करते हैं, टोकनाइजेशन से आपके पास आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। मींस जो सेंटेंस के अंदर लेट सपोज जो मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है,
वो आपके पास आ जाएंगे। फिर उन कीवर्ड्स को मीन्स ये इंफॉर्मेटिव फीचर्स एज ए फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। उन फीचर्स को आप क्या करते हैं, कीवर्ड्स को आप कन्वर्ट करते हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका मोटिव इसमें क्या है, कि आप एक सेंटेंस को उठा के उसको ट्रांसलेट करते हैं या जस्ट क्लासिफाई करते हैं। तो अगर जस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन है, सो दिस थिंग विल बी सफाइस, कि आप पहले उसकी पार्सिंग करके टोकनाइजेशन करके आप कीवर्ड्स निकाल के उसको न्यूमेरिक में थ्रू एनी वन हॉट इनकोडिंग स्कीम या एनी अदर इनकोडिंग स्कीम आप उस करेक्टर डेटा को जो कीवर्ड्स आपके पास आए हैं वो कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद जो है आप क्लासिफायर अप्लाई करें। ठीक है, मतलब इसके हमें प्री प्रोसेसिंग करने के बाद टोकनाइजेशन करना है। हाँ जी, आप देख लें ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप डायरेक्टली इस तरह के फुल सेंटेंसेस नहीं दे सकते एल्गोरिथम को, ठीक है। आप देख ठीक। लें कोई एग्जांपल, आप देख लें कि मींस इसके नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ना, कि मींस आपने किस तरह अपने क्वेरीज को उठानी है, सेंटेंसेस को उठानी है, उसको किस तरह जो है उससे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। तो वो सारे आप सीक्वेंस में देखें, एक सिक्वेंशियल स्टेप्स उसमें होते हैं। तो उसके बाद जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डील विद दिस डेटा। हम जैसे कि फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी हमने एग्जांपल में देखी, तो उसमें ऑलरेडी मोस्ट ऑफ देम दे कंटेन जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो हमने डायरेक्ट फाइल उठा के वहाँ पे एल्गोरिथम को प्रोवाइड कर दी। एक सैलरी वाला जो डेटा था उसके अंदर कैटेगरिकल थे, एक कॉलम था जिसके अंदर कैटेगरीज पड़ी हुई थी, तो दैट्स व्हाई वी अप्लाइड वन हॉट इनकोडिंग। So like the thing is, still we had like features, already extracted features, whether they were in the numerical form or in the categorical form, okay? But in your case, if you have just strings, the features are not extracted. What you have to do, you have to first pre-process the data. You have to identify the features, and then you have to convert those features into numerical form, then apply the classifier. Yeah. Yes. प्रेजेंटेशंस ग्रुप में नहीं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप जो है, हेलो जी 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 सर, कंफर्म करना था कि ग्रुप्स में प्रेजेंट करना। देखिए, आई ऑलरेडी सेड के इट विल बी बेटर इफ इंडिविजुअल आप प्रेजेंटेशन दे दें, ठीक है। बट इफ यू कंसीडर इन अ ग्रुप, सो मैक्सिमम 2 people ग्रुप इज अलाउड। राइट। जी, हमारा जो रिसर्च आर्टिकल है मेरा जो है वो क्लाउड से रिलेटेड सिक्योरिटी बेस्ड, तो मैंने इसमें फजी यूज किया हुआ है, तो ठीक है मैं इसको कंटिन्यू करूं? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर। देखिए, किसी ने मुझे स्टार्ट में किसी ने पूछा था लेक्चर के स्टार्ट में कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्चुअली problems we can consider for the presentation or for our work. So actually like this thing you should have uh, uh, thought about like quite earlier. अभी तो काफ़ी लेट हो चुका है, बट स्टिल आई विल से कि आप जैसे कि कोई क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है जिसके अंदर ये जो जितने भी एल्गोरिथम या तो मल्टीपल एल्गोरिथम्स एट सेम टाइम यूज हो रहे हों, या जस्ट सिंगल इनमें से कोई, जैसे फजी लॉजिक इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, मे बी उसकी सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए या मे बी रिसोर्स शेयरिंग के लिए, वट एवर द मोटिव इज। तो इस तरह के टास्क के लिए जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं, जो एल्गोरिथम, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, फजी लॉजिक, एआई का कोई और एल्गोरिथम, ठीक है, तो वो जो हैं हम आप यूज़ करके अगर कोई चीज़ परफॉर्म करें, कोई problem solve करें, so that is applicable, that will be considered valid for this course. Okay. So in case no other questions, so let's wind up the lecture. Inshallah, see you in the next lecture and be prepared for that one. Hopefully we will conclude the contents in that lecture.